Let's Let's go. go. So, after a really long time again, we are here with another episode of Crude Chat with Shubham राम J. कृष्ण We हरि just don't want to- पांडुरंग विठ्ठल राम राम भाई सारियाने Let's go. We're not stopping here. We're not stopping here, guys. We're not जीसस stopping here. महाराज की जय. एक सेकंड के लिए एक मोमेंट के लिए हमने सोच लिया था बॉस अब पता नहीं अगले एपिसोड आने के लिए कितने साल लग जाएंगे हाँ. बट यस द वे वी सेड अर्लियर कि वी हैव कंप्लीटेड 10 episodes and we're not stopping now. Let's go. In any possible manner we are not stopping. Whatever it takes, however it goes. ये एक नया Crude- टर्न है अभी yeah. टेक्निकली. Crude Chat will remain crude forever. And Crude Boys are back again with a big number. अभी कुछ बोलता ना मैं रहने दो, बाद में बोलूंगा मैं. कुछ नहीं थोड़ा सेंसर ऑडियो इज स्पीकिंग अप मैन आई मीन जस्ट अ लिटिल बिट थोड़ी सी कुणाल की वॉल्यूम मेरी पिक हो रही है. या ठीक है, होल्ड ऑन. स्लाइड अ बिट चलेगा सॉर्ट. a bit low, I guess. Yeah. कुणाल जी आप आपकी बैरीटोन वॉइस में बोलिए. आप अपनी आवाज थोड़ी धीमी कर दीजिए. आवाज थोड़ा कम करना पड़ेगा. Yeah. माइक में ओनली. जिंदगी में तो आवाज बढ़ कौन सा Or गट else कौन सा investors- गट या तो इन्वेस्टर्स क्वेश्चंस करना क्वेश्चन start करेंगे. यस हमारे क्रूड चैट के हमारे इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर हाँ हमारे इन्वेस्टर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे बट बिफोर वी मूव अहेड I want to introduce our guest of the day. Guest of the night, I can say. Now it's not going to be Monday evening. ऐसा That कुछ Monday नहीं है. silly evening was not going to be our podcast day now. It's going to be Sunday or Saturday. Let's decide it here, guys. हमारी अभी आज ही मर्जी. decide करते हैं कि क्या होने वाला है. संडे करते हैं. संडे इज अ गुड डे. Sunday morning. हाँ Sunday संडे morning. संडे मॉर्निंग Sunday morning 10 chat. a.m. The way we put out our last podcast, I guess. हाँ It was Sunday morning 10 a.m. हाँ. राइट. So Shubham J here. लेट्स गो. Let's go, All the way let's from go. Airoli. ओह Yo guys, the super talented guys, they just stay in Airoli. A town is बाहर निकलते नहीं है हम A लोग. town is the best place. We just in love Navi Mumbai, Airoli. you can say. Yes. We Now got the Roshan big to- roads. We got sector 14 right there. नवी मुंबई का नाम A town से ही famous हो रहा है. Yes, बस. let's go. स्ट्रेट अप. Yes. So, I mean, this podcast is going to happen when we completed our 500 subscribers. That is what we decided with Shubham also. कि हम लोग 500 subscribers complete करेंगे. उसके बाद ही ये podcast हम लोग लेके आएंगे. But then yes, 750 हो गए हम. हाँ और यार. हमारी वॉच टाइम तो पार कर चुकी है एंड आई विल स्टिल से दैट 65% ऑफ आवर ऑडियंस हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू द चैनल. यू गाइस जस्ट नीड टू सब्सक्राइब बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर द वे इट इज गोइंग crazy things are going to come on Crude Chat. Crazy people just like us, just like Shubham, like we three, like you'll see it today, guys. You just have to stay tuned Yes. till the end of this episode. Yes. Crazy things are going to happen, like not just things in a way कि 3 लोगों के बीच में एक threesome. It's not that. That is not gonna happen. ए Who's Shubham नहीं Jadhav? I didn't come here for this. Okay. ऐसे मत करो The मेरे साथ. interviewers are asking a question. A threesome. Who is शुभम जाधव? Who is Shubham Jadhav? देखो दोस्तों मेरा He's a नाम friend है. of Emmy बनता है. ये क्या हो गया? Oh my god. Oh my god. नहीं, मेरी पहचान मैं खुद बनाऊंगा. No. ए डिस कर दूंगा. No. ज्यादा बोलो मत. माइक को डिस करो फटफट. Oh god. डिस हो जाएगा डिस. Yes. Who is Shubham Jadhav again? शुभम जी शुभम तो नाम तो है अपना शुभम ज्यादा बट अपन को हमेशा उससे बनना था कूल तो ऐसे तो कूल है नहीं तो सोचा नाम को कूल कर ले. Cool है भाई, cool है. कूल है. तो सो जैसे आई नो कुणाल कितने अपन तो बहुत साल से जान been a रहे decade हैं now, एंड मैं स्कूल में था तब से मैं प्रवीण को जानता हूँ तो प्रवीण मुझे रॉकस्टार कह के बोलता था तभी. मैं था इतना छोटू सा हाफ चड्डी में प्रवीण रहता था फुल पैंट में. That chomu little guy from the school. You know? yes. I still remember those. I don't know how to call them. The cool guys from school. I don't know if they exist now. हाँ मर गए साले. ये सबके स्कूल के साथ ऐसे ही होता है ना. अब ऐसे चूते ही जो Cool guys from school they just disappear हाँ. the way dinosaurs did. नाम ले लूं मैं नाम ले लूं मैं डरता नहीं हूँ It's- दोस्तों मैं I नाम think ले लेता हूँ. बहुत- from बहुत everybody's cases है. from everyone's circle. हाँ, हाँ. I'll say that कि जो स्कूल में एकदम प्रॉपर बिना प्लेट वाली पैंट बेल बॉटम पैंट पहन के फ्लैट बिना राउंड क्या बोलते हैं उसको एकदम गांड. राउंड शूज एकदम राउंड एज कॉर्नर्स वाले शूज आते थे ना वो हम लोग जो नॉर्मल स्कूल में पहनते थे. हाँ हाँ बाद में वो got it. हमने Got it. वो स्क्वायर कट वाले शूज स्टार्ट Got करे it, थे. got it, got it.
तो वो जो राउंड वाले शूज तो हम लोग पहनते थे भाई, चोमू लड़के, और हम सोचते थे बस दीज आर द गाइज जिसकी तरह हम लोग को बनना वो है। नैरो कर दे आगे वो से, लोग नैरो कर देते थे, नैरो जीन्स, नैरो जीन्स। नैरो केम लेटर ना भाई, उसके पहले वो टेपर्ड, थोड़ा टेपर्ड वाला था, हाँ, बेल बॉटम, एंड फिर उसका टेपर्ड आया। बेल बॉटम में और स्मार्ट लोग थे जो पीछे चेन लगाते थे, उसकी चेन लगाते थे। नहीं यार मेरे टाइम नहीं था। नहीं देखा मैंने, आई Okay, बिन तो देयर, मेरे टाइम पे तो था ये। हाँ बिन देयर। तेरे टाइम पे टेपर्ड आ गया होगा, थोड़ा हाँ, नैरो आ narrow गया आ गया था, नैरो आ गया था। narrow। मेरे टाइम पे वो फेज आ रहा था, वी वर गेटिंग ऑफ बेल बॉटम एंड नैरो वाज द शिट। So we were from the same school, and me and Shubham were from the same school, right? Zenith International, Zenith International now. It's now Zenith International. No more Prior Saraswati. to that, it was Saraswati Vidyalay. Vidyalay. Yeah, it was Saraswati Vidyalay. And we had English medium, Marathi medium. Now it's just English medium, exclusively for ICSC board. Only. Cool हाँ kids only. ICSC Just है। ICSC now, I guess, because state अच्छा। board में शायद बंद Cool कर kids only. दिया। Cool kids only, yeah. So yes, CBSE ने, yeah. तो शुभम basically since school Since school, Music- he was is in into music music shit. only. Like, तभी ना मुझे 2-3 जन, I still remember there's a friend of mine. उसने मेरे को बोला था भाई उसका ना स्टूडियो घर पे, sweet. उसके घर पे स्टूडियो, उसने स्टूडियो बना के रखा है और उधर सब कुछ है, एवरीथिंग लाइक म्यूजिक से रिलेटेड, म्यूजिक का सब कुछ है। वो सब गिटार विटार बजाता है वहाँ पे, वो रिकॉर्ड करता है वहाँ पे, उसका सब कुछ सारा स्टूडियो उसने, बस सब आप अमीर है बोलते हैं। दिस वाज अ वेरी गुड बिग रूमर, नॉट जस्ट रूमर, यस डेफिनेटली इट्स अ फैक्ट कि भाई तुम्हारे पास अगर पैसा है तो तुम लोग डाल सकते हो। तो ये बात ना अंदर ही अंदर चलती थी, अरे वो लड़का ना म्यूजिक करता है, उसके घर पे तो स्टूडियो वूडियो बना के रखा है उसके लिए, वो सब कुछ करता है करके। तो मेरे फ्रेंड का भाई भी ना, नॉट मेरे फ्रेंड का भाई, मेरे भाई कजन भाई है मेरा, ओमकार's ब्रदर। तो यू रिमेंबर सूरज, राइट? सूरज कांबड़ी, yes तो उसने बोला भाई मेरे साथ एक लड़का है शुभम करके, शुभम गिटार विटार बजाता है, बहुत अच्छा गिटार बजाता करके, उसका तो भाई उसने तो स्टूडियो रखा, मतलब मेरा दोस्त है वो। हम लोग तो जानते हैं लाइक दूसरे को पहले से जानते करते हैं हम लोग। तो लाइक हाँ भाई उसके घर पे तो स्टूडियो वीडियो बना के रखा है, उसने तो बहुत अच्छा बजाता करके, ये करता है वो करता है। तो नाउ आई वाज वेरी मच क्यूरियस टू नो, कुणाल नोज अबाउट शुभम वेल, उसके बाद का तो स्टोरी कुणाल ने जाना है। इवन द पीपल हु आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो, वो लोग बोलेंगे कि बेंचो किसको बुला दिया। सही बात है, बिकॉज ये भी एक नॉर्मल इंसान है, जैसे नॉर्मल इंसान है ना। अभी लास्ट टाइम शीतल आई थी, शीतल नॉर्मल इंसान है ना, अच्छी लड़की, शीतल चौधू इंसान है बट ठीक है। ठीक है। तो शीतल ने तो हमको भगवत गीता के बारे में बताया, 2-4 चीजें बताया। हाँ ठीक है, मतलब या ओके फाइन दैट वे, रिलेशनशिप के बारे में बताया। तो शीतल रिलेशनशिप वाज वेरी, आई मीन मैं, तुम लोग ने मेरे को देखा होगा भाई, मैं तो रो दिया था लिटरली, फैमिली वाले किस्सों में मैं रो दिया था। बट नाउ Shubham is not just a normal Shubham, है ना? He's something. He's doing something in his life. Like normal Shubham as in मतलब basically because Shubham is such a common name, you tend to think कि अरे हाँ मतलब doesn't sound very cool. हाँ किसी का actually अपन तीनों का नाम किसी का cool नहीं है but ठीक है। मेरा सबसे अनकूल है भाई, सबसे अनकूल है प्रवीण। हाँ प्रवीण, it's so fucking 80s 90s भी नहीं बोल सकते, तो 80s ही बोल सकते हैं। 80s guys, I'll tell you, मेरे नाम की ना ट्रेजेडी तुम लोगों को पहले बताता हूँ, ठीक है? Now we are on the topic of Shubham, but still प्रवीण का टॉपिक एक छोटा सा बनना चाहिए। Like I was born in Modi Hospital, Airoli. If you guys know Modi Hospital. Yes. Represent. अरे भाई उसके सामने से अपन ने हेलमेट चुराया था। हाँ ये टॉपिक पे आएंगे भाई साहब। तो शुभम द म्यूजिशियन इज आल्सो थिक। तो मोदी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। मेरे माँ बाप डॉक्टर मोदी के ऊपर इतना फिदा हो गए ना, ओह, कि प्रवीण मोदी के नाम से प्रवीण नाम रखा। ओह, डॉक्टर मोदी, डॉक्टर प्रवीण मोदी। अच्छा कोई और भी है? आई थॉट देयर इज ओनली वन मोदी, प्लीज देयर इज ओनली वन मोदी। तो इज नॉट डॉक्टर मोदी ना। आई रिफ्यूज टू, you never know, कम ऑन, never know कभी आएगा कोई यूनिवर्सिटी से। गाइस आईटी सेल, you know, do your work. Is everything, yes guys, we are BJP supporters man, I mean are you BJP supporters? Obviously. Yeah. I'll tell you now that you have asked कि like अपन लोग बीजेपी सपोर्टर, कुणाल का नाम होता है, मतलब होता है कमल, तो मेरे से बड़ा बीजेपी सपोर्टर कोई नहीं है। लेट्स गो। और मेरा नाम ही ओरिजिनेट हुआ है प्रवीण मोदी से। बस, और जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ मैं, उस बंदे का नाम सरनेम भी मोदी है। What about you? You should give the validation. अभी शुभम का, हाँ नहीं, सही है शुभम का भी है, उधर ही है मतलब। मैं हल्का सा, मैं सेंट्रिस्ट हूँ। नहीं हाँ मैं सेंट्रिस्ट हूँ। हम बोलने के लिए सेंटर, हम राइट विंगर है। Yes. कुछ बोलोगे ना घर पे आ जाऊंगा, बट मैं सेंट्रिस्ट हूँ। By who is Shubham Jadhav now? Shubham Jadhav is a musician, but what do you play, Shubham? Like guitar? अभी फिलहाल तो आई एम डाइविंग इनटू एवरीथिंग।
जैसे गिटार आई स्टार्टेड विद गिटार बट धीरे धीरे यार ऐसे फील हो गया कि इफ़ यू वांट टू मेक इट ऑन योर ओन यू हैव टू नो एवरीथिंग, एटलीस्ट यू हैव टू नो द बेसिक्स ऑफ एवरीथिंग. तो जैसे मैंने गिटार से स्टार्ट नहीं किया, ये ज़्यादा लोग को पता नहीं. यस माई फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज तबला. टिडिंग Oh, टडंग yeah, टडंग yeah, yeah. हाँ, दादिन निंदा दादिन निंदा दादिन तिंदा. Like, you used to play in school also? आई यूज्ड टू प्ले इन स्कूल आल्सो. या तो स्कूल में जो पहला लड़का था जो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है वो मैं था. ओ तो मैं तबला प्ले करता था, फिर इवेंचुअली मैं गिटार प्ले करने लग गया. और इंडियन आइडल, भाई इंडियन आइडल क्या टाइम था वो, कि मैं वो ही देख के इंस्पायर हुआ. अभिजीत सावंत आया, एक पैर ऐसे ऐसे हिला रहा है. थोड़ी सी कम. क्या ऑडियो? अच्छा हाँ, हाँ, ठीक हो रहेगा. ठीक है, ठीक है. आवाज अपना थोड़ी कट. We're still managing the audio, guys. हाँ भाई, because, हम लोग का अभी- noob guys with no audio and video नहीं, नहीं, experience. नहीं, नहीं, ये गलत तरीका है बोलने का. लेट्स पुट इट लाइक हमारी पर्सनालिटी काफी हैवी है तो वो ले नहीं पा रहा. तो You can say that. थोड़ा डिम डाउन करना पड़ रहा है. we don't fuck with technical difficulties Okay, like so that. he was the only guy. Shubham was the only guy who used to play some Yeah. instrument. Yes. तो अभिजीत सावंत आया था, इंडियन आइडल जीता था, तो मैं देखता था ऐसा बनना है कुछ. तो जैसे वो एक पैर हिलाता था गाते टाइम, देखो साइड में क्लिप लगेगा अभी. अभिजीत सावंत एक पैर हिला रहा है. तो फिर मैं भी वैसे इमिटेट करता था. और फिर तब मोहब्बतें लुटाऊं. Legendary shit. फिर मैंने मम्मी को बोला, मम्मी यार मुझे भी ऐसा करना है. तो मम्मी ने कहा ठीक है, तबला क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं. तो तबला क्लासेस ज्वाइन किया. और तब आइडिया नहीं था कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बट आई स्टार्टेड लर्निंग तबला. और फिर इवेंचुअली गिटार मुझे सीखना नहीं था, मुझे पता भी नहीं था गिटार क्या होता है. ओह माई सिस्टर वॉन्टेड टू लर्न गिटार, बट जैसे हमारे घर पे पेट्रियार्की है, सबके घर पे है ना, लोग ही चलता ही है. लड़की क्यों, लड़का सीखेगा. सॉरी गाइस. मेरे को लिटरली गिटार इज एन इंस्ट्रूमेंट जो मेरे को ना बहुत दर्द वाला लगता था. बिकॉज यू नो हाँ, I get it. कि भाई उंगली पे लगता है. हाँ. प्लस इधर उधर करके तुम चलाओगे. प्लस उसको हर चीज को सीखने में टाइम लगता है. तो मैं ये सोचता था ना, लाइक दीज आर द थिंग्स. और या इंस्ट्रूमेंट्स वो चीज़ होती है ना, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल, लाइक व्हेन वी डिड नॉट हैव दैट एक्सपोजर टू लर्न ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स, राइट. हम लोग ऐसे एक्सपोजर नहीं था, तुम तबला सीखो, ये सीखो. obviously. तो जो पैदा होके ही शुरू करते हैं सीखने को, वो लोग ही कर सकते हैं सब चीज़ें. नहीं तो बाकी अपने लिए थोड़ा ना ये सब चीज़. हाँ, obviously it also depends on the surrounding you are in ना. अभी सरस्वती स्कूल, मतलब कोई भी बेसिक स्कूल्स ना, I don't think so. Tabla, tasha, dhol were the only things where like people were लेजिम. हाँ. And I think it's हाँ, मतलब अपन उधर ही तक थे. उस लेजिम में जाने के लिए मैं इतना तड़पता था भाई अमेजिंग है वो. मतलब भाई लिया नहीं कभी. I know यार, I शिंदे सर know. ने तो ये लिया नहीं नहीं. लिया भाई. मैं I know इससे यार. खार खाता था उस बंदे से. अरे शिंदे सर अभी प्रिंसिपल है. ओह, अब जेनिथ के भी. जेनिथ के भी. यस, जेनिथ के भी मतलब क्या. जेनिथ के के भी. वो तो सरस्वती में थे ना प्रिंसिपल. सरस्वती नहीं, यहाँ शिफ्ट पे हो भी गया. है. गॉड. पैसा खिलाया रहेगा. Anyway. नहीं भाई, इज अ वेरी गुड गाय. नहीं अच्छे. हाँ नहीं, आई एम जस्ट किडिंग यार, कम ऑन. पहचानेंगे नहीं वो, मजाक अपन कर बोल रहे हैं. सकते. मेरे को तो पहचानेंगे भाई. तो अपने टाइम मुझे पे नहीं पहचाने तो मैं बोल सकता हूँ. नहीं भाई, इज अ वेरी गुड गाय. तो या आई वाज सेइंग अपने टाइम पे ना, मतलब बेसिक स्कूल्स जो होते हैं, नॉट कॉन्वेंट स्कूल्स, उधर ताशा, ढोल एंड लेजिम एंड दिस, मतलब इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली, उसका ही रिप्रेजेंटेशन रहता था. बाकी गिटार विटार तो आई डोंट थिंक सो. वो सिर्फ ऑर्केस्ट्रा वाला इसमें था कि गिटार बजता भी है क्या पीछे, नहीं पता नहीं कोई बजा रहा है कि नहीं. तो कमिंग टू गिटार फ्रॉम तबला, आई थिंक वो बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट है. बहुत बड़ा कल्चर शिफ्ट है, क्योंकि अपने इसमें है ही नहीं वो इतना वाला. अभी मेरे को भी, फॉर एग्जांपल, आई वाज इन अ स्कूल कॉल्ड मनीषा विद्यालय विच वाज इन कलवा. तो मेरे को बचपन में वो रोटो देखा है ना. जेवियर्स में आने, कॉन्वेंट स्कूल में आने के बाद मालूम पड़ा कि फक, देयर इज अ प्रॉपर ड्रम किट, यू कैन सिट एंड प्ले. अब मैं वो बता नहीं पाया किसी को, बट मेरे लिए तो बहुत बड़ा, अरे फक ये क्या शिट है. तो वो एक अलग बात है. सिमिलरली मैं तो कोई बोल रहा था, शुभम पहले तबला सीखा है. अपने अभी इमेज है कि ही इज अ गिटार प्लेयर, इज अ सिंगर एंड दिस एंड दैट, but he started from tabla. Now he shifted to. instruments does he play? Shubham तो कितने instruments है I भाई? play tabla. Nice question. I play guitar. I play electric guitar, which is almost the guitar. I play bass Now your guitar. audio is so low that I cannot even listen to you. you know? Oh fuck, इतना लोग कैसे हो गए? Check. सही है अभी. This is good. Yeah. This is This fine. is This is nice. fine. This is fine. So I play guitar. I play electric guitar, which is almost a guitar. I play bass guitar. I play keyboards. बस man, show I podcast can किया. produce music. I sing. And I also compose and write for other people. जैसे मैंने अभी एक गाना लिखा था So this आमिल. is for Z Music also, right? You produce some music. Not for Z Music. It was for an artist called Zayden. Okay. I have produced a song for T Series in the past.
तो उसकी भी काफ़ी फनी स्टोरी है कि चलो अभी चल रहे हैं तो मैं बता Also, hold on, Shubham. He's Yeah. being modest that he said I can produce music. ये can बहुत modest मेरे को लगता है word है. He does produce music अच्छे से professionally. He's doing his shit. Yeah. Now please continue. So I produced a song for Zayden and Lisa Mishra. आपने सुना Can होगा. you sing a verse about it? I just want to listen to that. तेरे बिन नहीं लगता मेरा दिल, तू ही रब है तू ही मेरा साहिल, सुन सजना मुझसे तू आमिन, अब तो तू आमिन. तो ये थोड़ा सा एक पार्ट था उस गाने का. Sweet. ये मेलोडी है भाई साउंड. बोल sweet. तो यार ये प्रोसेस ही वैसी है ना कि यू डू रैंडम थिंग्स एंड समवेयर समथिंग क्लिक्स एंड इट गोज स्टार्ट्स मेकिंग वेव्स. जैसे दिस सॉन्ग इज कॉल्ड आमिल. ओरिजिनली मैंने पीसी में इफ आई कैन शो यू राइट नाउ, उस सॉन्ग का नाम मैंने सेव किया है जेडन टाइप करके. दिस इज ड्यूरिंग 2020. Sweet. कोई लिंक नहीं है जेडन का, कोई मैं किसी इंडस्ट्री वाले को नहीं जानता. मैंने बस एक गाना बना दिया जेडन टाइप, और मैं इवेंचुअली बोर हो गया. तो क्या होता है, मैं मेरा क्लटर क्लियर करते रहता हूँ. तो मैंने कहा यार एवरेज गाना है, रिसाइकल बिन. तो एक दिन मेरा एक दोस्त है चरण, शाउट आउट टू चरण, वो एरोली आया था स्टूडियो. तो हम लोग सोच रहे थे कि क्या बनाए. तो मैंने उसको प्ले किया था कि यार ये शायद से रिसाइकल बिन में है कुछ गाने, मैं प्ले करता हूँ. तो उसको अच्छा लग गया. नाउ जेडन इज अ फ्रेंड ऑफ हिज. तो फिर हम लोग ने How did you already save the name Zayden? Because ऐसे ही बस एक music- फील हुआ मुझे. he's with the Zayden already. He's been making songs or whatever. या तो उसने वो कि ये वो उस vibe वाइब में का बनाया है, करके. उस वाइब का कोई एक गाना है. तो मैंने वैसे ही बना दिया, मैंने रीनेम कर दिया उस फाइल को. तो मैंने उसको प्ले कर दिया. हम लोग ने एक थोड़ा सा ऑलमोस्ट कंपोज तो था ही, थोड़ा यहाँ वहाँ चेंजेस करके चरण ने जेडन को पिच कर दिया. अब जेडन को पिच कर दिया. पहले तो उसका था कि लेट मी थिंक. अब मैं सब बात नहीं बता सकता. प्रोसेस कैसी होती है दोस्तों, इतना सिंपल नहीं होता. बट फिर इवेंचुअली हिज मैनेजर विच इज़ हु इज़ आयुष्मान, ही मैनेजेस अनूप जैन, अरमान मलिक, all these huge guys. तो he heard the song and he found potential in the song. So वो गाना डन हो गया. और I think it was supposed to come out in 2022 October. I submitted the files in April 2022. And फिर now this is a thing about these songs. जैसे उस गाने की मेलोडी हो चुकी थी. Now we were supposed to write the lyrics. मैं था उदयपुर में. मैंने कहा मैं आऊँगा वापस तब मैं लिखूँगा. तो it must have taken me only 10 minutes to write the lyrics. तो एक वो गाना है और एक अभी एक Which is the same song again? सेम सॉन्ग क्योंकि पहले एक मेलोडी और म्यूजिक बन चुका था, लिरिक्स नहीं थे उसमें, बस एक हुक लाइन थी. तेरे बिना नहीं लगता मेरा दिल, वो एक थी. तो लिरिक्स लिखे 10 मिनट में वो लिरिक्स भी हो गए. वी सेंट इट ओवर, एवरीथिंग गॉट अप्रूव्ड. सो इट वाज सपोज टू कम आउट दैट ईयर. बट इन दिस इंडस्ट्री अगर आपको कोई कह रहा है कि अब रिलीज होगा, वो मोस्टली नहीं होता. इट टेक्स वन एंड एटलीस्ट 1.5 year. So it came out after 1.5 year, and just before the release, Zayden told me कि we are trying to get Lisa Mishra on. Lisa Mishra, for people who don't know, कि उसने वो डिवाइन वाला कौन सा गाना है, मैं और मेरा दोस्त. नहीं whatever. I think if you people don't know Lisa Mishra, तो मतलब अगर तुम the girl who sang तारीफा कि निया तारीफा चाहिए तन्नू, she's pretty. तो फिर we got her vocals. ए वापस क्लिप रिवाइंड. सब लोग वड़ा पाव कुनाल के उसको लीजा मिश्रा के इसमें जाके ये टैग कर दो, क्रूड चैट वड़ा पाव कुनाल. फिर हो गया भाई, वो गाना रिलीज हो गया. किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी. नाउ दिस इज अनदर थिंग आई विल टेल यू कि एज म्यूजिशियंस, जैसे हम लोग कोई इंडस्ट्री कनेक्ट नहीं है. जैसे किसी ने कहा कि ये तो पैसे वाला, कोई पैसे वाला नहीं है. इट्स जस्ट हार्ड वर्क. अब 10th के बाद घर वाले लोगों को बाइक दिला देते हैं लड़कों को. हाँ ठीक है, ले बाइक ले, मस्त है. मुझे भी ऑफर किया था, मैंने कहा नहीं चाहिए मुझे चाहिए म्यूजिक का सामान. अब एक बाइक एवरेज आती होगी 90,000 80,000. मेरा म्यूजिक का सारा सामान शायद से उससे कम में आया. बट मेरे पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि ये ले सब एक साथ. नहीं, पहले लिया एक साउंड कार्ड जो बेसिक चीज़ है, वो ली. फिर मेरे पापा ने पूछा मुझे कितने का आता है. मैंने कहा, मैंने अच्छा वाला बताया था पहले, कुछ 40,000 का. उन्होंने कहा मैं तो नहीं दे रहा. मैंने कहा ओके ठीक है चलो. फिर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए ऐसे ही. देन यू ऑल्सो हैव टू हसल.
कि यार कोई इक्विपमेंट नहीं है बट अपन यूट्यूब से देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स और वैसे कुछ बनाने को ट्राई कर रहे हैं. राइट. नाउ देर आर पीपल हु आर लुकिंग फॉर सॉन्ग्स हु डोंट हैव दैट बजट. तो मैंने 2000 में 3000 रुपए में भी गाने बेचे. तो you compose the whole songs and you एट दैट पॉइंट जो मेरे पास आ रहे थे दे वर मोस्टली रैपर्स. तो उन्होंने गाना उनका लिख रखा है. दे जस्ट टेल मी कि ये वाइब है. तो मैं वो वाइब की एक बीट बना के उनको घर पे बुला के. So how is the beat making process? Is it simple? Like, you know, there are people selling beats, right? या They sell Yeah. beats online. बहुत सारे लोग बेचते हैं ना beats online बेचते हैं. भाई कुछ नहीं है. इट्स जस्ट फ्लो. अब समथिंग दैट आई मेक आई विल टेल यू नो. जैसे अभी says on the beat है ना. हाँ, that's Is going भाई to सुंदर प्रोड्यूसर. हाँ, मतलब that's a big game. Now he's a very big name and और काम भी बहुत अच्छा है. Okay. तो I think once you get into production and you थोड़ा तो अभी म्यूजिशियन को एक मालूम रहता है ना कि रिदम क्या चीज़ है. या जिस भोंगे को रिदम ही नहीं मालूम है वो चूतिया ही प्रोड्यूसर बनेगा. सही बात है. ना. तो और एंड ऑलमोस्ट एवरी प्रोड्यूसर ना, हर कोई प्रोड्यूसर ही वो इंस्ट्रूमेंट्स इसलिए सीखता है तो इट जस्ट गेट्स बेटर. है कि नहीं. अभी शुभम हैड अ बैकग्राउंड ऑफ तबला. Right. बहुत हेल्प करता है. तुम डायरेक्टली कल के दिन सोचोगे तुम्हारा कुछ लेना देना है नहीं म्यूजिक से और तुम जस्ट बिकॉज सेज ऑन द बीट फेमस हो गया या कोई फेमस हो गया या कोई प्रोड्यूसर फेमस हो गया कि मेरे को प्रोडक्शन कर रहा है. आई डोंट थिंक सो. इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. नो. जैसे लोग आए हैं मेरे पास गाने लेकर बट यार मैं आई विल टेल यू सिंगर्स बिकॉज नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बीट मेकिंग. आई नो हाउ टू प्रोड्यूस अ कमर्शियल ट्रैक. उसका एक फ्लो होता है कि पहले थोड़ा म्यूजिक आया, फिर उसका मेन एक वर्स आया, स्टैंजा आया, जिसको नॉर्मली लोग स्टैंजा कहेंगे बट वी कॉल इट वर्स. अंतरा अंतरा एंड मुखड़ा. अंतरा एंड मुखड़ा. तो फिर अंतरा आया, फिर बाद में भाई what the fuck. Santra. I thought this is some girl's name. Antra and Santra. You know Santra referring to Antra. I thought it is something like that. मेरे दिमाग में कुछ और आया. संतरा. अंतरा. That is what I thought, right? Santra and Antra. Santras and what would you call? Fucking shit. Crazy. Cut. Beep. Beep. Yes, again. Come on. तो आई नो हाउ टू स्ट्रक्चर अ सॉन्ग बट जैसे अनट्रेंड सिंगर्स आते हैं तो उनको मैं कितना भी कहूँ ना कि भाई ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर गाओ. अब उनको पता ही नहीं है वो चीज़ क्या है, वो कैसे कैच कर पाएंगे. यू कैन ओनली टेल द डिफरेंस व्हेन यू ऑलरेडी हैव सम सेंस नो कि ये होता क्या है. बेसिक्स तो आने चाहिए. तो इन दैट केस ऑल्सो वॉट हैपन्स इज कि लोगों को लगता है आपका काम अच्छा नहीं है. यू आर नॉट मेकिंग मी साउंड गुड. मैं तो स्टूडियो में आया हूँ. अरे भाई तुम अच्छे से गाओ. तुम अगर अच्छे से गा रहे हो ऑटो ट्यून पे सब कुछ चल जाता है. हाँ, नहीं कर सकते हैं. बट सच ऑटो ट्यून इज सच अ स्मॉल थिंग. नॉट इतना जो हाइप मिल गया ना पीछे. क्या है ना, जब चार चूतिया जिनको म्यूजिक का मालूम नहीं है ना, उन्होंने एक नया शब्द सीख कहीं देख लिया ऑटो ट्यून. अब वो हर जगह. भाई मैंने सुना बादशाह और एपी ऑटो ट्यून है. हाँ, पूरा. सब ऑटो ट्यून, सब ऑटो ट्यून. ऑटो ट्यून क्या है? ऑटो ट्यून इज नथिंग बट इट डिजिटली करेक्ट्स योर टूल है बस छोटा सुर्स. सा. हाँ. अब जैसे मैं ये एक सुर है, ये एक सुर है, ठीक है, और ये एक सुर है, 3 सुर है, इसमें पढ़ते हैं. ये काफी विजुअल. मिड लो. नहीं, सुर, 3 सुर. सुर है. I सारे don't know ग frequency. सारे ग पकड़ते हैं. लो ये 3 से. ये हाई हो गया तो ये मिड हो गया. ये लो हो गया बेंच पे. सारे ग, ये सारे ग है. तो म क्या होता है? अरे चिल मारो भाई. 3 से. अभी एग्जांपल के लिए सारे ग है तो आपको लगाना है रे, बट आपसे थोड़ा सा रे से थोड़ा सा कम में लग गया. तो ऑटो ट्यून क्या करेगा, अगर उस स्केल में आपका वो चाहिए नोट, तो जो इधर लगा ना उसको थोड़ा सा रे पे लेके आएगा. तो उससे वो आप पिच में परफेक्ट हो गए. उतना ही है वो. बट अगर आप उसको 100% कर दोगे ना, फिर वो लगा वो हो जाएगा. वो एग्जैक्टली मजा आता है ना सुनने को भाई. यस, डीजे में तो वही चलता है भाई. I'll tell you, ये जो ऑटो ट्यून वाला बकचोदी लेमैन चोदू लोग है ना, जो अबे बोला ना, 4 चूतिया बैठ के किसी कोई न्यूज़ चैनल ने बोल दिया या किसी ने कोई बकचोद म्यूजिशियन ने बोल दिया अरे वो तो कमर्शियल म्यूजिक है उसमें ऑटो ट्यून का. अरे ऑटो ट्यून जस्ट अ फकिंग टूल, स्मॉल टूल दैट विल डू थिंग्स. इट डजंट डिफाइन अ सॉन्ग, इट डजंट डिफाइन द सिंगर. अभी ऐसे भी कितने सिंगर होंगे जो अच्छे बड़े बड़े नाम होंगे, तुमको हजम नहीं होगा, बट इतने बड़े बड़े नाम होंगे ना जिनके प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में होता सबके उसमें होता ही होगा. है ना. तो ये भी एक चीज़ है कि पहले के ज़माने में म्यूज़िक उतना अच्छे से सुनाई नहीं देता क्योंकि उतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं, थोड़ा लो क्वालिटी था. तो इन लो क्वालिटी यू कैन नॉट फिगर आउट कि क्या सही है क्या गलत है. और तभी हर इंस्ट्रूमेंट का एक इंडिविजुअल माइक भी नहीं होता था. जैसे 2-3 माइक है, अगर वायलिन प्लेयर का सेक्शन है तो वो खुद आगे आएगा माइक के पास
और फिर वापस पीछे जाएगा, ये भी एक टाइम था. बट एज टेक्नोलॉजी हैज़ गॉटन बेटर और म्यूजिक भी HD हो गया ना अब, हाँ. जैसे विजुअल HD हो गया, म्यूजिक भी क्लियर हो गया. एग्जैक्टली. तो उसके साथ हर एक माइन्यूट चीज़ अब वो परफेक्ट चाहिए. अब है तो हम इंसान ही, परफेक्ट तो नहीं हो नहीं सकता. होने वाला. सो ऑटो ट्यून जस्ट हेल्प्स यू. तो ये जो पुराने सिंगर्स थे सब बिना ऑटो ट्यून के चलते थे यस पहले. हाँ. डेफिनेटली. एंड देयर वर टेक्स ना, फिर वो लोग 1000 टेक लेते होंगे भाई. नाउ इट्स लाइक इफ यू गिव वन टेक और शायद थोड़ा इधर उधर ठीक हो गया तो सेकंड टेक लेने की जरूरत है नहीं. That's And like, it's a privilege for everybody. यस यस. It's not like it's an unfair thing कि तुम No. नहीं बना सकते तो वही बना सकता है. या ऐसा तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई. ठीक है ना. No, no. Who's your favorite singer? आई इन इंडिया यार नहीं यार, मुझे ये India? बहुत लोगों ने पूछा है, मुझे ऐसा कोई है नहीं है सच कि एक ही Indian सिंगर singers में. एक ही सिंगर अच्छा लगता है. Indian artists में. आर्टिस्ट बोल, सिंगर मत बोल, आर्टिस्ट बोल. Indian इंडियन artists. आर्टिस्ट क्या बोल सकते? नॉट नहीं, no one. नहीं, नो वन. मैं सबको सुनता हूँ. जैसे अब मैं कोई मेरा ऐसा जो मतलब उसकी मेलोडी तुमको अच्छी लगती होगी, तेरी उसकी आवाज थोड़ी अलग लगती होगी, थोड़ा फ्रेश लगता होगा, ऐसा कोई है जो ऐसा कुछ लगता है? फ्रेश A breath of fresh air. Fresh, yes. I saw this is actually a very I do tough I do question. and इस चीज पे कुणाल will also agree. Who is it? पीयूष भिसेकर from Pune. Yes Shout out. sir. पीयूष पीयूष भिसेकर, भिसेकर. a very good friend. हाँ. और भाई good आप guy. उसके गाने सुनो, मजा आएगा. Good guy, पीयूष good बाद में तू भी मेरे गाने रेकमेंड करना. Oh, so it's a paid recommendation or it's a barter no recommendation? no. It's going to be unfair. No sponsor guys, no sponsor नहीं, hashtag. he's a good Piyush person. Bhisekar. पीयूष भिसेकर. So if you like chill vibes, he's a Yeah. मस्त अच्छा लड़का. अब जैसे हम सुनते भी हैं हिप हॉप म्यूजिक, कुणाल भी हिप हॉप सुनता है, मैं भी हिप हॉप सुनता हूँ. हम रेयरली कोई, बट हम जब बैठते हैं ना, हम लिरिक्स सुन रहे हैं पीयूष के, हम पागल हो रहे हैं कि भाई ये क्या लिख दिया इसने, हाँ, he's a good guy. Very ये good guy. तबला कैसे डाल दिया इसने एक मेन स्ट्रीम गाने के अंदर, डिग डिग सुंदर. बहुत So he Nothing like that. composes his own songs or Yes, he yes, is yes. like He composes, he writes, he sings. Amazing guy, amazing and amazing human. वो बात है ना, जैसे बोलते हैं ना, एडिटर इफ अ एडिटर स्टार्ट्स अ यूट्यूब चैनल ही इज गोइंग टू ब्लो अप बिकॉज ही नोज शिट. एडिटर का माइंडसेट अलग होता है. विजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट. तुम कंटेंट क्रिएटर हो, कुछ भी हो तुम, लेकिन जब एक एडिटर सोचता है ना, उसको मालूम है क्या फ्रेम जाएगा क्या नहीं जाएगा, कितना विजुअली अपीलिंग उसकी लगेगी. स्टोरी टेलिंग भी पहले से रेडी एग्जैक्टली. एंड सिमिलरली अ प्रोड्यूसर विल जस्ट मेक थिंग्स बेटर. अभी सीधे मौत का आई थिंक एक कोई पुराना सीधे मौत सबको पता ही है. तो अगर सेज ने उनसे गांड मार के उनके गाने चेंज करवाए हैं, उनके लिरिक्स चेंज करवाए हैं, बिकॉज आई थिंक वो पिक्चर पूरा देख पाता है प्रोड्यूसर. विजन देख पाता है कि अरे भाई ये दिस कुड गेट बेटर लाइक दिस. आर्टिस्ट का पेन से लिखना या धुन सोचना, बट उस धुन को पूरा बनाना, उसको बिठाना कि ये लिरिक्स यहाँ पे, ये लिरिक्स की जगह ये बैठेगा, अच्छा द सॉन्ग विल लाइक ओवरऑल एक अच्छा गाना बनेगा, वो प्रोड्यूसर का काम है. एंड शुभम बेसिकली डज दैट प्रोड्यूसर थिंग ऑल्सो. एंड इज ऑल्सो ऐसे, अभी कैसे ना बहुत सिंगर लोग होते हैं जो बधिर होते हैं, उनको सिर्फ गाना गाना आता है. एंड दैट्स अ फैक्ट. दे कांट विजुअलाइज, एंड विच इज आई थिंक स्टूपिड. इफ यू कांट विजुअलाइज योर आइडियाज एंड सॉन्ग की, तो तू एक पोपट हो जाएगा ना, तो सिर्फ आएगा गाना गाएगा. वो डायरेक्टर्स म्यूज या मूज वॉट एवर, हाउ म्यूज यू प्रोनाउंस, MUSE म्यूज. हाँ, दैट्स अनदर थिंग कि वो एक्टर है तो डायरेक्टर्स म्यूज बन जाए एंड ही विल डू वॉट एवर. बट आई थिंक सिंगिंग, ये सारी चीज़ों में ना थोड़ा आर्टिस्टिक अप्रोच हो. यू शुड विजुअलाइज योर सॉन्ग और वॉट एवर. वो अगर अच्छा प्रोड्यूसर मिला ना उसको, तो काम भारी हो जाता है. एक अच्छा सिंगर को चूतिया प्रोड्यूसर मिला ना, लौड़े लग जाते हैं. एंड दैट्स अ फैक्ट. कितना भी अच्छा सिंगर हो, उसका अगर प्रोड्यूसर अच्छा नहीं है ना, या कंपोजर अच्छा नहीं है, प्रोड्यूसर ही बोलूँगा मैं, कंपोजर फिर छोटा टर्म हो जाता है, तो वाट लग जाती है. तो शुभम बेसिकली हैज़ ऑलरेडी बीन अ सिंगर, इज प्लेइंग गिटार. ही गॉट इनटू प्रोडक्शन. आई नो हिम फॉर 10 years, more than 10 years probably now, है ना? 12-13 से जान रहे हैं, 12 से. तो शुभम, अभी देख, शुभम इज into this music industry, हाँ, जिसमें एक niche है hip hop भी, है ना? Yes. तो you know many rappers also, Yes. like famous rappers also. So this was a very famous question put on by Raftar. बहुत साल पहले की बात है ये तो, जब एमी और रफ्तार का हुआ भी नहीं था. are rappers Making money. Yes. That was a time when there were not enough rappers still. It was emerging. तब बन रहा था चीज. Now you see in India also, every gully almost has a rapper, and they want to become rappers. Like Every gully भी ना अभी I think is a small term. Every खानदान has a rapper now. every Yes. खानदान, Yes. every खानदान. वो बच्चे का वीडियो देखा था स्कूल में, MC स्टैन गा रहा है. हाँ. Yes, yes, yes. So nowadays there are a lot of people who are rapper. I mean, हर एक को rap करना है. Do you think there is a future in rapping now? Typical, in India? just rap.
Or yeah, just wrap it. वो क्या होगा ना नहीं आई वुड he should I answer that. think you also have to have a brand and image along that. How did MUA become famous then? MUA bro हक है उस इंसान को. भाई अब वो सवाल ही नहीं. no, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं है. पीपल थिंक MUA अचानक आ गया. MUA को मैं पहचान First thing, yeah. How do you know MUA and how can you say so much things about MUA? क्योंकि वो validation भी जरूरी नहीं. भाई मैं हक से बोल सकता हूँ. अगर एक इंसान है जिसके बारे में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, दैट इज शाहरुख, who also known as MUA. जैसे मैं तो उसको शाहरुख ही कहता हूँ आज के डेट में भी. भाई हम मिले थे 2013 या 14 में ऑन फेसबुक. ना वो म्यूजिक बना रहा है ना मैं म्यूजिक बना रहा हूँ, बट बनाना दोनों का है. तो ऐसी कोई फेसबुक आई गेस 13 में रहेगा कि 14 में ही रिलीज्ड नहीं वो और बोले बनता बम है, बम. क्या बोलते हैं, yes yes that yes. was- So that was his first song. ओके Yes. अच्छा फर्स्ट सॉन्ग था वो उसका. उसके पहले भी उसने मिंटा उसने पहले ना उसके इंग्लिश सॉन्ग्स निकालता था वो. He used to sing यस English यस songs, right? यस उसने मिंटा के साथ 2-3 गाने निकाले हाँ थे मिंटा उसके के साथ पहले. था बराबर राइट. बट हम बात कर रहे थे और ऐसी हे ब्रो डू यू मेक म्यूजिक, हे ब्रो आई ऑल्सो लाइक टू मेक म्यूजिक. बना रहा कोई नहीं है, बट वी वर जस्ट डिस्कसिंग कि क्या होगा कैसे होगा, और फेसबुक चैट ही हो रहा है. और फिर वही मैं मेरा स्कूल 13-14 का बैच में था, मैं 10th. फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया परस्यू करना, एक एक चीज़ लेनी चालू कर दी. तो फिर वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आया था. घर आया, वेरी हम्बल गाय, वेरी हम्बल गाय. तभी तो सबको हम्बल रहना ही भाई, तभी तो कोई फेमस नहीं भाई. नहीं नहीं रहना है, what what आज about now? नहीं वो Still इंसान is, आज भी still हम्बल है. is. मैं चैट दिखा दूंगा. मैं 2 दिन पहले बात कर रहा था. वेरी हम्बल गाय, वेरी हम्बल. आज भी मतलब जैसे मैंने उसको उस दिन देखा था ना, ही इज स्टिल द सेम गाय. Okay. क्योंकि लोगों का हो जाता है मैं तो इतना बड़ा स्टार हूँ. उस इंसान को आज कुछ ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की. मैं और कुणाल भी बात करते हैं, भाई व्हाट इज ड्राइविंग हिम. द हंगर है मैन. फक पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, इतना सब कुछ He है. loves music, that is the thing, right? आई डोंट नो व्हाट इज इट जो दैट इज ड्राइविंग हिम. एनीवे लेट्स गेट बैक ऑन हाउ थिंग्स हैपेंड यार. तो फिर बात होने चालू होगी. फिर एक दिन आया वो घर पे, फिर मैंने दिखाया देखिए ये लिया है. तो ही वाज लाइक अच्छा ये माइक अच्छा है, ठीक है मैं भी ये लेता हूँ. तो वी हैड सिमिलर सेटअप्स. नाउ द थिंग इज मैं कवर्स करता था वो टाइम पे. आई हैड अ बैंड, आई वाज डूइंग कवर सॉन्ग्स. ही वाज इनटू रैप. रैप करके कुछ था नहीं इंडिया में. वो हनी सिंह वाला एक कमर्शियल था वो, जो आज हम रैप जानते हैं वैसा रैप था बिल्कुल नहीं. नहीं था. तो फिर ही वॉज डूइंग दैट. ही वॉज ऑल्सो पुटिंग आउट कमर्शियल सॉन्ग्स. ही वॉज ट्राइंग एवरीथिंग कि जो भी चल गया चल गया. चल गया, got it. वो हाथ पैर मार रहा है यहाँ वहाँ. सो इंडियाज़ गॉट टैलेंट जिस दिन सभी लोगों ने देखा होगा, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में MUA आया था. तो जिस दिन उसका शूट हुआ उसी दिन हम मिले थे फॉर उस वो टाइम पे वर्ल्ड कप चल रहा था. तो वी मेट फॉर एक न्यूज़ चैनल का वो था प्रमोशन वाला. तो एक ऐसा टाइम था कि रात के 3 बजे हम लोग गए हैं, और उसका घर कोई बड़ा नहीं है. लोग बोलते हैं बहुत पैसे वाला था, नहीं था भाई. 1 आर के टाइप्स घर था. तो हम रात के 3 बजे गए. मेरा पूरा बैंड है. हम लोग ने रिहर्स किया कि क्या बजाएंगे कल सुबह जाके. बैंड्रा में था शायद से वो शूट. तो हम गए, हमने प्ले किया. एंड ही हैज़ बीन ऑन हिज जर्नी सिंस देन. ही वॉज वेरी श्योर कि मुझे हर महीने में एक गाना डालना है तो डालना ही है. तो कैमरा किसी के जुगाड़ कर लिया. कोई किसी का इंटरेस्ट है कैमरा में, उसको बोलिए भाई आ जा अपन करते हैं. एंड दैट गाय हैज़ ऑलवेज बीन वेरी ट्रांसपेरेंट विथ क्रेडिट्स ऑल्सो एंड शोइंग रिस्पेक्ट टू समवन हु हैज़ वर्कड विथ हिम. आप देखोगे आर्टिस्ट कितने बीफ हो जाती है इसी बात को कि मुझे क्रेडिट नहीं दिया. यू शो मी वन केस वेयर पीपल हैव सेड दैट अबाउट MUA. नो वेयर विल यू फाइंड दैट. अब ये अलग बात है कि वो बनता है रिकॉर्ड्स और ये वो That's his thing, bro. Boss, it's business then. right? बिजनेस. यस एग्जैक्टली, इधर तो भाई दैट्स selfie बिजनेस. सबको होना पड़ता है भाई. क्योंकि अगर अंदर के इतना अंदर के 4 लोगों को मिर्ची लगे फिर वो कोई बात नहीं. सही बात. 2 लोग छोड़ के भी चले जाते हैं, उसमें कुछ अलग थोड़ी ना लगने वाला है भाई, है ना? तो भाई फुल सपोर्ट यार. MUA सवाल भाई ही को नहीं फुल भाई. सपोर्ट हक सवाल से. नहीं. he's मतलब he knows him for like 10 years now, more than 10 years probably. किल है भाई वो. I met him because of शुभम. कुछ तो काम था, we met him at एंटॉप हिल उसके एरिया में है भाई. धतिंग तब तो रफ्तार वाला लफड़ा हुआ भी नहीं था. नहीं हुआ था. नहीं हुआ था. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज सड़क करके गाना आ रहा था, हैशटैग सड़क. एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट कि क्या है क्या नहीं था. उससे बोल रहा हाँ हो रहा है. और धतिंग है भाई एरिया में उसकी. हाँ ट्रिपली बैठ के घूम रहे यू हैं. फील द ऑरा. हाँ भाई यू फील द ऑरा व्हेन यू आर विद हिम. मैक्स मतलब अपन कैसे अपने 4 दोस्तों वो के बाइक कौन सी थी उसकी? सिंपल ही थी वो जो उसके वीडियो में भी है. आई डोंट फक हाउ डिड आई फॉरगेट. CD100 टाइप दिखती ऐसे है. हाँ छोटा बाइक ऐसा कुछ नहीं डूड. और वो टाइम पे ना वो काफी फेमस हो चुका था. दिस वाज
this is now I'm talking about very just before the Raftaar thing happened, I guess. Yes. 18 के आसपास, 18 या 19, 18 था शायद, 18 होगा, और काफी फेमस था भाई तभी तक वो, काफी गाने ब्लो अप हो गए थे, ही वाज डूइंग मिलियंस एंड व्हाट नॉट, और भाई पटेली फुल वो एरिया में घूम रहा है, धतिंग फुल धतिंग, और ट्रिपली बैठ के घूम रहे हैं। अपन कैसे एरिया में मस्ती करते हैं, अपन घूम रहे, पब्लिक आ रही है, सेल्फी ले रही है, एंड वो हम लोग एक एरिया में गए, लोग चिल विल किया, डांस का प्रैक्टिस कर रहे थे उसके दोस्त लोग वो, और जो है वो है भाई, वो एकदम ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल Yes. एंड सेम एज, बट ही वॉज वेरी रिस्पेक्टफुल, और मैं तो म्यूजिक में था, एंड वी टॉक बहुत, मैं उसको फर्स्ट टाइम मिला था, ऐसा नहीं लगा था फर्स्ट टाइम मिला, बहुत चिल बंदा है, एकदम मस्त था। अब उसके बाद क्या हुआ, द रफ्तार थिंग ब्लू अप, एंड आई ऑलवेज, मैं तो इसको बोलता ही हूँ, आई डोंट थिंक कि रफ्तार अभी Never meant shit. रफ्तार की वजह से नहीं फेमस हुआ भाई, अगर ऐसा कुछ नहीं, चलो रफ्तार वाज अ स्टेपिंग स्टोन, बट बजा तो दी थी रफ्तार की भाई, That is आई what- टेल यू अभी तो फेमस होएगा कोई, obviously, अगर obviously. नीचे गिरता ना वो देखिए, तो बोलता है बहुत बहुत बड़े रैपर से पंगा ले लिया, ऐसी होने वाला है। नहीं आई But टेल यू it's a totally different एक बहुत opposite. सिंपल, एक पाकिस्तानी चैनल है, वो रिव्यू करता था, उसने एक बहुत सिंपल बात बोली थी, which applies everywhere. MAO was the underdog, रफ्तार had a lot to lose. Yes. रफ्तार इतना बड़ा नाम था इंडस्ट्री में, है ना, तभी तो एमवे ने जब बोलते हैं ना अंडरडॉग जब कुछ करता है ना, तो पब्लिक चाहता ही ऊपर वाला गिरे करके, वो तो हर किसी में, एमएमए में देख लो, फाइटिंग कोई भी कल्चर में देख लो, कोई एक स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होगी ना, कोई एक अंडरडॉग जब तोड़ती है ना उसको, तो पब्लिक वो उधर की भी इधर आ जाती है कि भाई तोड़ इसको अब। हाँ, तो इसमें एमवे ने वो टाइम पे उसको, अगर तुम बिजनेस वाइज बोलो, कैपिटलाइज किया उस चीज़ को, तो मस्त किया, दैट वाज अ वेरी नाइस मूव। और उसके पर्सनल, उसको जो सच में बुरा लगा होगा तो बहुत अच्छी बात, और एनर्जी से गया होगा, बट उसी साइड को तुम रफ्तार के साइड को देखो, तो रफ्तार मीनिंग बोलना, क्यों रफ्तार जो एक्सप्लेन करता है ना हमेशा उसको कि मैं वो गलत नहीं बोला, हाँ उसके लिए वो गलत नहीं बोला, और एमओ को पूरा हक था कि वो गलत लगवा के लेने का, क्योंकि इट वाज लाइक कि मेरा पर्सनल ईगो है, बहनचो तू, मैं कमा रहा रहूंगा, मैं नहीं बता रहा हूँ दुनिया को, और शायद नहीं भी कमा रहा हो, बट सम अपना ईगो जब फटता है you ना, not being in the thing, how are you telling this, right? I mean that is what he said, right? कि तू भाई अंडरडॉग पब्लिक के लिए तू कर क्या रहा है, जो तू बोल रहा है कि पब्लिक को कमा क्या रही है, राइट? दैट इज व्हाट ही सेड। वो अभी वो नहीं भाई, वो देख कैसा है ना, ये गेम है ना, पब्लिक आधी इसमें चूतिया ऑडियंस है, कटता तो ऑडियंस का ही है ना, इसमें रफ्तार का भी नाम बहुत हो गया है, शाहरुख एमवे का भी नाम बहुत हो गया, इट वाज अ विन-विन फॉर बोथ, विन फॉर बोथ ऑफ देम, उसने भी ऑडियंस गेन कर ली, इसने भी ऑडियंस गेन कर ली, किसके लिए क्या कर रहा है, पब्लिक के लिए कौन कर रहा है वो नहीं जज कर सकते। अभी वो सेम चीज चल रही है ना, अभी हनी सिंह और व्हाट डू यू कॉल इट, वो चूतिया बादशाह वाला चीज चल अरे रहा वो तो जिंदगी भर चलता रहेगा, दोनों दुनिया को चूतिया बना मेरे को रहे हैं। लगता है, आई थिंक इट्स ये जो क्या बोलते हैं, ये यूएस पॉप यूएस रैप का चलता है ना, ये ड्रेक, अरे इनकी औकात ही नहीं है भाई, और भाई K-Dot वो सब नहीं है, वो K-Dot। ये लोग ना सिर्फ उधर से म्यूजिक ला सकते हैं, वो कल्चर नहीं ला पाएंगे, नहीं उधर कुछ नहीं ला पाएंगे, डिस चल रहा है ना, हाँ, वो तो चल रहा है, ड्रेक को साइड कर दिया है, ड्रेक को साइड, हाँ वो चल रहा है, ले मैं अभी एमए बोल रहा हूँ, रफ्तार एंड दिस रफ्तार बोल रहा हूँ यार, हनी सिंह एंड बादशाह, ये सब तो ऑल इन ऑल एक हिप हॉप की बात करें ना अपने देश में, आज IHH हो गया, DHH हो गया, ऑडियंस इतनी चूतिया है ना, इतने चूतिया रैपर यहाँ मुंबई के, मैं बोलूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई की बात करूँ, यहाँ पे शोज करते हैं मैं बीच में रील डाला था कि शोज कर रहे हैं यहाँ पे, तुम भोसड़ी वाले, तुम्हारे तो 100 लोग नहीं आ रहे, तुम्हारी औकात, तुम मिलियंस में कर रहे हो ना, आज एमवी में बेंचो स्टेडियम भर सकता है, उसकी औकात है उतनी, कुछ भी बोल लो, उसने अपना इतना बनाया ना, बाकी एमवी के टट्टे हैं सब, इतने उसके बाद शाणे बन रहे हैं ना सब, उसके गोटे पकड़ के बड़े हुए हैं, नहीं भाई ने बस एक डाल दिया ना, बीइंग हियर खत्म एट 5 PM, खत्म, रास्ता ब्लॉक होने वाला सवाल ही नहीं भाई, उसको हक है उतना। और ये जो एमवे के हाइप को सब बाकी रैपर जो बड़े हुए ना, सब एमवे के हाइप, मुंबई में ना डिवाइन, नेजी, एमवे, ये 3 नाम है बस। नेजी है अभी, हाँ भाई, मैं तो नेजी को नेजी तो रिस्पेक्ट है, कम full बैक respect है। हो नेजी गया, नेजी नेजी भाई, का, नेजी yes, भाई, और कमबैक की नेजी बात ही is नहीं है, back. नेजी इज लाइक लेजेंड, Good. तुम उसको छोड़ ही नहीं सकते, ओजी, वो खत्म है भाई, तुम, मैं आज देखता हूँ, आ रहे रुक जाओ, मेरे को मेरी गांड जलती है, बेंचो लोग चूतियागिरी बातें करते हैं, तो माय पॉइंट इज, क्या बोल रहा था मैं, हाँ एमवे बाद में जो रैपर बने शोज करते हैं, इधर रफ्तार को गाली देते हैं, कोई दिल्ली के रैपर को गाली देते हैं, रफ्तार की गलती क्या है, बेंचो ना वो चूतिया ऐसा हर जगह अच्छे के चक्कर में ना 4 चीजें बोल देता है, सबका भला करता है भाई, एक्चुअली रफ्तार की भी बहुत नाम खराब होना कि बेकार बंदा है या कुछ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन, आई नो पीपल हु हैव मेट हिम, आई नो पीपल हु आर एसोसिएटेड विद हिम, दे आर लाइक ब्रो, वो जितना वो अच्छा दिख रहा है ना, तो सोशल मीडिया पे बात करता है ना, वो एक्चुअली उतना 4 गुना ज्यादा अच्छा है रियल लाइफ में, वो उसके पर्सनल लाइफ में सबके लफड़े हैं, जो भी हो रहा हो तुम उसको नहीं जज कर सकते, उस चीज को लेकर जज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग एट द ओजीज ऑफ मुंबई, एटलीस्ट इट्स डिवाइन, नेजी, एमवे,
एंड स्ट्रेट अप ये टॉप 3 है. उसके पहले जो कौन कर रहा था मुझे सब मालूम है. बॉम्बे फाइनेस्ट या मुंबई फाइनेस्ट में अपना ये टोनी साइको. देख ये सब डोपेडेलिक्स. ये लोग सब ओजी हो गए. मैं तो डोपेडेलिक्स को एक शो में भी थे हम लोग साथ में. ये सब हो गए बट रूलिंग द गेम बोल सकते हैं ना, जिन्होंने इतना बोलते हैं ना, डिवाइन बोलता है ना मैंने अंडरग्राउंड मेन स्ट्रीम में लाया वॉट एवर इज लिरिक्स. तो माई पॉइंट इज ये 3 टॉप है भाई. अगर उस टाइम पर डिवाइन को जैसी मशीन लगी पीछे और डिवाइन कहाँ से कहाँ फट गया जब मेरी गली में निकला, सिमिलरली अगर नेजी के साथ होता नेजी भी फट जाता वहाँ तक. बट नेजी आई थिंक ही वाज स्ट्रगलिंग विद हिज ओन पर्सनल थिंग्स व्हाटएवर, है ना. आज लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं नेजी की, बहनचोद मीम बनाते हैं, अरे ये वो, अरे वो ये रैप कर रहा है, ये फ्री स्टाइल कर रहा है, जो भी उसका चूतिया क्लिपिंग निकलता है. भाई तुम भोसड़ी वालों रैपर लोग और तुम चूतिया ऑडियंस चड्डी में मूत रहे थे ना, है ना, तब से वो भैंचो रैप कर रहा है. आज से 10 साल पहले मैं वही मेरे को बोलना था. Among these three, he has a very different flow. Different मतलब style उसका भाई. flow ही अलग है पूरा, right? My point is the disrespect, the meme culture, whatever is going on. आफत. लंड लिख लो, तुम्हारा फेवरेट रैपर चड्डी में मूत रहा था ना, तब से वो रैप कर रहा है. तुम्हारे फेवरेट रैपर की औकात नहीं है. आई एम सेइंग दिस वेरी बिकॉज इट इज सच बात है भाई. इट इज क्या लेजेंडरी आदमी है यार. वो क्या लिख रहा है वो, तुम उसके 4 क्लिप चला के कोई वीडियो से उठा के उसका डिसरिस्पेक्ट मत करो. हमने भी किया है बीच में. मस्ती वो बीट चेंज, लेट्स अरे गो. वो तो हम करते रहते हैं, लेकिन बट I But see the respect तो disrespect respect है भाई. I see the Yes. disrespect is so stupid and it is because of stupid audience. The audience is so stupid. मैं उसी दिन बोला कि ऑलरेडी छोटी कम्युनिटी है, ऑलरेडी तुम बहुत गाली खा रहे हो. हिप हॉप तुम सब लोग देखते रहे चूतिया, हाँ हिप हॉप वाला है, अरे रैप वाला है. पहले हिप हॉप बोलते थे, अब वो रैप वाला है, हाँ चूतिया है. तो तुम उसको और कम्युनिटी को तोड़ो मत, स्ट्रॉन्ग बनाओ. रॉक मेटल कम्युनिटी कैसी है बहनचोद, 50 लोग ही आएंगे शो को, लेकिन 500 रुपए टिकट देख के आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और चिल करके जी रहे हैं. इधर क्या हो गया, कचरा हो गया, क्योंकि अबंडेंस पे आफ्टर रफ्तार एमीवे एंड थैंक्स टू कोविड लोग सब बहनचोद यही सुनने लग गए. दैट वाज द एंटरटेनमेंट थिंग. सबके लिए वही हो गया. And people moved forward from Honey Singh, Badshah, whatever, and now they are listening to the underground thing. Thanks to Divine, thanks to Raftaar, thanks to Easy. नहीं एमीवे वाला डिस नहीं होता तो आई डोंट थिंक वो मूवी भी चलती इतनी. नहीं चलती. और वो सीन भी उतना ग्रो नहीं होता. शुभम, we are talking about the movie The Gully Boy. The Gully Boy बोल रहा है बहनचोद. Gully Boy. Gully Boy मूवी का क्या था वो? मूवी लॉन्च, सॉन्ग प्रमोशन, सॉन्ग लॉन्च या जो भी था. एल्बम लॉन्च का जरा कहानी बता दो. उस दिन आप गए थे और उस दिन एमीवे ने क्या बनाया था, जरा बता दीजिए. तो मैं और आशीष जो हमारा बेसिस्ट है, आशीष वानखड़े बेबी, आशीष बाजी. Okay, now I know Ashish Baj. तो हम गए गली बॉय, ये रिचर्डसन एंड क्रूडस, तो वहाँ गए थे. तो ये गली बॉय का एल्बम लॉन्च था. अब मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि एमीवे भी हो गई वहाँ, सब दिख रहे हैं, सब आर्टिस्ट हैं. मैंने कॉल किया एमीवे को, मैंने कहा भाई कहाँ है, दिख रहा नहीं है तू. भाई मैं काम कर रहा हूँ. क्या हुआ? नहीं भाई मैं काम कर रहा हूँ, अपन काम कर रहे हैं अभी, बाकी लोग को करने दे, अपन काम करेंगे. Guess which song he was making that night? How can I guess, man? I don't know. अच्छा तू एमवीवे सुना नहीं है क्या? एमवीवे का बिगेस्ट सॉन्ग तेरे को बिगेस्ट सॉन्ग कौन सा है? मतलब तेरे को लगता है एकदम एमवीवे का बहुत फटा है गाना एकदम? Give me 3 options. नहीं यार फिर मजा नहीं आएगा. Oh fuck man. बहुत commercial, एकदम commercial सबसे 100 million पार हुआ था एक सॉन्ग. I don't know. हाँ यस, एमीवे इक्वल टू दैट सॉन्ग वैसे हो बस गया. वैसा था. परसेप्शन ही वो है. बॉलीवुड नाच रहा है उस पे, सब नाच रहे हैं उसमें. क्रिस गेल नाच रहा है. यस एग्जैक्टली, मचाएंगे. Yes. भेंचोद ब्रो, सो लेजेंडरी है. मेरे को बोला, मैं बोला भेंचोद, फट गया मेरा दिमाग. भाई वो मचाएंगे बना रहा था उस दिन. और ऐसे नहीं कोई हाई फंड स्टूडियो में, फक नहीं, एक छोटे से घर में कहीं. फक डूड. टोनी जेम्स है और वो है काम कर रहे हैं. मैं बहुत गाली, मैं एमवीवे के बहुत सारे गानों को गाली दिया हूँ. मतलब ऐसा हम तो बहुत क्रिटिकली बात करते हैं. मैं हम लोग भी डिस्कस हिप हॉप, वी डिस्कस एवरी अदर सॉन्ग. हम लोग बहुत क्रिटिकली सारे इसके गाने को, सबको गाने हम लोग, बिकॉज अभी म्यूजिक से हम बेंचो बात करेंगे ही. बट भाई द आइडिया कि उधर डिवाइन है, उधर आई गेस नेजी है, सब है भाई. रणवीर सिंह, पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री आके उधर खड़ा है और ये लड़का भैंचोद मचाएंगे बना रहे हैं अपने होम स्टूडियो पे. और माच चोद दी सबकी इसने. भैंचोद ब्रो, 100 million पार था ना वो. 100 में. अरे भाई मेरी इसने बोला तो जब वो सब हो गया, फट गया गाना, जब इसने मेरे को बताया ना कि भाई वो गाना बना रहा था, आई वाज लाइक फक. बिकॉज नाउ आई डू क्लब शोज एंड वॉट एवर. मैं खुद ड्रमर हूँ तो मैं यहाँ वहाँ बकचोदी शोज करता रहता हूँ.
क्लब में ना मैंने उसके पहले शायद डिवाइन 1-2 बार सुना था, जिस क्लब से मैं गिग कर रहा था। ए वेंचो ऑडियो कैसे आ गया? ओह गॉड, हाँ कमर्शियल्स का ऑडियो, कमर्शियल्स की ऑडियो चालू हो खुद गई का guys. कॉपीराइट खुद को। तो या आई वाज सेइंग कि दोनों किससे इज अ फ्रेंड जो हम लोग ऐसे साइन करा के नहीं लेते हैं, राइट जिसके से लौड़े लग गए बेंचो। काश किससे ने साइन कराया होता पेपर, आई नो भाई किससे भाईचारा साइड में रख के थोड़ा साइन करा दिया होता यार। हाँ तो या आई वाज सेइंग एनीवे इन द क्लब्स, एनीवे इन द क्लब्स भाई आई जस्ट रैप्ड अप माय किट एंड एवरीथिंग, हम लोग का गिग हो गया और एमीवे बजा। मैं शुभम को ग्रुप में वीडियो भेजा हूँ, भाई मचाएंगे बज रहा है भेंचोद। आई वाज लाइक फक। एंड लोग बोलते हैं ना बहुत रैप से छपरी ऑडियंस आया है, ये आया होगा, कचरा ऑडियंस आया होगा, नो डाउट आया होगा, जो भी है काय के लिए अपन डिफाइन करे हो कि क्या ऑडियंस है। बट वहाँ पे ना भाई सोबो में थे हम, सोबो, और उधर के लौंडे लड़कियां नाच रही है भाई मचाएंगे पे। मेरे को इतना बड़ा आज win भी लगा नाचते भाई, आज भी भाई अभी दैट वाज लाइक द इनिशियल स्टेज। तू समझ रहा है एमईवे का गाना एक तो ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ ना वो कम्युनिटी इतनी नीश है कि यार ये हिप हॉप वाली पब्लिक ही सुन रहे, बट वो क्लब में बज रहा है, ही मेड अ बैंगर। आज कहानी बज रहा है, हल्दी बोलो, बहनचोद शादी बोलो, क्लब बोलो, सब जगह मचाएंगे। आई थिंक ये सेंचुरी का वो लिस्ट में आ गया गाने। सही बात है भाई। हाँ, ये वो गुलाबी at least- साड़ी वाला ये हाँ, कर रहे हैं ना, वो गुलाबी कुछ नहीं है भाई। तेरे को लगता है कि भाई एमीवे इज द ओजी, एमीवे हैंड्स इज द डाउन। फेस ऑफ इंडियन हिप हॉप राइट नाउ। यस। हाँ हाँ, टॉप 5 टॉप 10 व्हाटएवर है उधर वो। और अगर पैसा भी बोलो ना नहीं आता, बिकॉज अब ये कैलकुलेशन, अब यहाँ पे लोग बोलेंगे ये भी कमा रहा है वो भी, वो लोग के पीछे कोई ना कोई बैकिंग है, देयर इज सम मैथ गोइंग ऑन, They're sharing their profits with Yes, somebody of course. else, right? obviously बट दिस गाय इज डूइंग इट ऑल बाय हाँ, he हिमसेल्फ। did it on his own। बाद में उसने जो भी ऑब्वियसली फिर वो बिजनेस साइड तो होता ही है, ये कोलैब करो, वो कोलैब करो, अदर बुलशिट तुमको बट नहीं, वो कोलैब्स भी उसके अंडर ही है। बहुत और हाँ, बधिर ऑडियंस को ना Yes. वो सारी चीजें समझ में नहीं यस आती। एग्जैक्टली। बधिर audience। बॉय लेबल लेवल अरे कुछ भाई, उस इंसान ने जो किया है ना वो कोई नहीं कर पाया आज तक। Yes. और इससे सीना ऐसा अभी उसके बाद वो आगे वो लेबल को किसी साइन हो नहीं हो या कोलैब करे, नहीं जरूरत है भाई। कोई There जरूरत should- नहीं there है। should be a There movie is on no him, li- show. Bollywood तो There is Bollywood no जाने label देता as भाई। big as एमीवे टुडे। Bollywood डिवाइन के ऊपर मूवी आने देगा अभी, एमवीवे के भाई ऊपर आने देगा। डिवाइन ने ना, डिवाइन ने पूरा देश लेके चला गया। Yes. डिवाइन पूरा देश, और डिवाइन ही फेस बन सकता था। डिवाइन डिवाइन के पास ना शायद वो अंधेरी में रह रहा था, तो वो लोग वो उस टाइप के म्यूजिशियंस, उस टाइप के लोग जो क्लब में बैठ रहे हैं। देखो तुम कितना ही बोलो, गली है इंडियन। डिवाइन को भी गली के बारे में बात करना पड़ा, फिर फटा, फिर वो आज क्लब में बज रहा था। ही मेड दैट काइंड ऑफ म्यूजिक। डिवाइन शायद हल्दी में ना बजे, बट एमवीवे बजेगा भाई हल्दी में। समझ रहा है? इट इज दैट काइंड ऑफ वो म्यूजिक। रूट्स पकड़ के बैठा है। हाँ, और वो अभी उसको किसी को भी कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि वो डिवाइन से बड़ा है या किससे बड़ा है, कुछ, या रफ्तार से बड़ा या हनी सिंह, कुछ जरूरत नहीं है। आज सब उसके गोटे चाटने आएंगे, बड़े बड़े रैपर, बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, सब अभी हाँ, ये जो डिस करते हैं ना सामने आने का, अरे भाई आपका गाना अच्छा लगा भाई। नहीं भाई, कुछ नहीं। How does he react to it? ब्रो वो बहुत हम्बल है यार, तुमको लगेगा नहीं। एंड दैट गाय इज सो कैरिज्मेटिक, ही वोंट मेक यू फील एज इफ इट इज द फर्स्ट टाइम यू आर मीटिंग हिम। कुणाल उसको पहली बार मिला है, आशीष पहली बार मिला है भाई। ये जब मिला है वो ऐसा फील, आशीष को तो अरे चॉकलेट बॉय। मैं तेरे को बोलूं ना, जब हम मिले थे ना 18 में, तब भी वो बहुत बड़ा नाम था मुंबई सीन में। एमवीवे वाज अ बिग डील। Now he's भाई कभी बहुत बड़ा हो गया है वो। I'll tell you, जब भी वो मचाएंगे सॉन्ग आया था ना, वो टाइम की बात है, मैं किधर भी अंधेरी साइड, मानखुड़ साइड, कुर्ला साइड भी, या हाईवे से किधर भी जा रहा हूँ अपना ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे में, कसम से बोल रहा हूँ भाई, स्टिल रिमेंबर इट, रिक्शा में बजते हैं। सवाल ही नहीं भाई। एवरी रिक्शा हैज दैट सॉन्ग, हैज द सेम सॉन्ग प्लेइंग। मतलब आई डोंट वांट टू से कि ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि रिक्शा में बजते हैं सॉन्ग। नहीं वो इट्स कि ये कि भाई वो गली तक सब पहुंच चुका है ना, रगों तक पहुंच चुका है भाई। वो रिक्शा से लेके क्लब से लेके बड़े Everywhere, पार्टीज, yes, आई हैव सीन रिच करोड़पति पीपल। आई डू वेडिंग शोज भाई, वेडिंग गिग्स में उसके गाने, वो डीजे जब बैंड का परफॉर्मेंस होता है, फिर एमवीवे के गाने बजते हैं, डिवाइन के बजते हैं। एमवीवे बजना ना, जस्ट बिकॉज आई मेट हिम, ही इज शुभम्स फ्रेंड एंड वी आर दिस क्लोज, सो इट्स सच कि इट इज पॉसिबल बिकॉज शुभम टेल्स अस ने कि भाई वो साथ में चालू किया है यार सब कुछ। एंड समवन हु गोज फ्रॉम जीरो टू सम लाइक सो, अभी तो कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। तो इट्स सच अ विन कि लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल बोलते हैं ना, यू जस्ट कीप डूइंग इट। करो वो यार वो बंदा, और ऑल्सो यू हैव टू बी रिसोर्सफुल। हाँ
and he's very smart too, business side and everything. अब Obviously जैसे has to be. मचाएंगे का वीडियो इफ यू सी इट इज अ GoPro, सिंपल GoPro. राइट. अब कोई नॉर्मल इंसान नहीं मुझे ये कैमरा चाहिए, नहीं मुझे वो कैमरा, नहीं केयर करता ब्रो. उसने बनाया डाल दिया खत्म, लेट्स मेक अनदर सॉन्ग. मैंने बीच में बोला, मैं शुभम का हम लोग से डिस्कस करते हैं, बीच में मैंने स्टोरी पे भी डाला था कि एमिवे से बेटर कोई म्यूजिक वीडियो बनाता नहीं. नो वन. एंड मैं आज वी स्टैंड ऑन इट. कोई नहीं, छाटा कोई नहीं बना सकता इस देश में एमिवे से बेटर. चलो कैटेगराइज छोटे कर देते हैं, रैपर, लेट्स कंसीडर रैपर कैटेगरी में कोई भी एमिवे से बेटर भाई कितने बड़े बड़े बजट हैं लोगों के, कोई नहीं कर पा रहा. कोई ये नहीं डायरेक्टर वो कुछ डायरेक्टर, नहीं. एमिवे अपने दोस्तों को लेके बना रहा है. वीडियो देखो उसका, आई डोंट रिमेम्बर द नेम भाई, फक. एक तो अभी वो लोग ने फ्री स्टाइल वाला डाला था जो, वो भी क्या वीडियो है, सारे वीडियो बोल लो. मेरे को बीच में स्टोरी पे पब्लिक लौड़े तेरी माँ की चुत लौड़े, काम तो देखो बहनचोद. इतना बड़ा बड़ा लोग कैमरा लगा के ना लंड नहीं बन रहा वीडियो लोगों से ढंग से. यार वो कौन सा गाना था उसका, गंदा फ्लो है गाने गाना, गंदा फ्लो है ना ना भाई वो अब वो शायद से वो इस पे शूट हुआ था, 200D था शायद से वो क्या बात कैमरा वो टाइम पे. आई थिंक इट इज हिज विजन. आई समझ में आता है क्योंकि आर्टिस्ट को पता होता है भाई वो कैसा प्रोड्यूस. दिख रहा है. अभी तो प्रोड्यूस खुद ही प्रोड्यूस करता है ना. बहुत कुछ कुछ सारा. करता है खुद, हाँ, कुछ हाँ, कुछ हाँ. अब प्रोड्यूसर्स हैं जैसे बट उसका मोस्टली आई थिंक सारे में गानों में और क्रेडिट्स में रहेगा ही वो. मिक्स मास्टर खुद करता है वो आज के डेट सोच में के. भी. क्या बात कर पटेल ही है उसके पास कोई और इंजीनियर नहीं है. ही इज़ वेरी हैंड्स ऑन, ही नोज कि उसका वोकल कैसे साउंड करना चाहिए. अब बिकॉज आई कम फ्रॉम अ म्यूजिक कम्युनिटी जो साउंड इंजीनियरिंग वाली साइड पे बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, भाई उसका वोकल तो ऐसा है. अरे क्या फर्क पड़ रहा है भाई, लौड़े वो कर रहा है game ऑडियंस बेंचो. इज एंजॉइंग, वो पर्पज है. अब ये भी एक साइड है कि लोग नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है. अरे किसको फर्क पड़ता है. The thing is that वो musicians लोग के गान में कीड़े गए और ये criticism, there are 10 other things to criticize. Don't criticize on his कि something he has made is done on his कभी own. कभी अगेंस्ट द रूल भी तो बहुत चीजें अच्छी होती चल है ना जाती है यार. यार, definitely. अरे वो कौन सा गाना है वो दिल्ली का रैपर जिसने परमेश वर्मा के साथ भी बनाया, डीजी फ्लो, DJ Mortal. डीजी मॉडल, जो उसका गाना चला कौन सा था वो गाना मिक्स मास्टर नहीं है, कुछ नहीं है, वो बस रात को उठा उसको लगा अच्छा है. उसके इंटरव्यूज है, अरे वो कहता मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे सही लग रहा है, अपलोड कर दिया भाई, फट गया वो गाना. यस यस आई यही रिमेंबर होता है भाई, मतलब बिन मतलब. हां मेरे को याद है. बिन मतलब लोगों को क्रिटिसाइज करना होता है ना. अभी वही बोल रहा था, क्रिटिसिज्म हम एमवी के लिरिक्स को क्रिटिसाइज करेंगे, उसके प्रोडक्शन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते भाई. लिरिक्स या क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, अच्छा है कि नहीं, वो इस चीज को, बिकॉज वी लव हिप हॉप, वी लव लिसन. बट देयर इज आल्सो दिस साइड कि हम मुंबई से, हाँ, सो वी are very bent over towards MEV, inclined towards MEV. But we also listen to Delhi hip hop जो कृष्णा है, सही लगता है भाई. हमें वैसा कुछ नहीं है. बट वो कैसे अभी वो नहीं मेरे को मजा आता है ना. I don't know why but कृष्णा अभी देख, अभी वी लिसन टू हिप हॉप एंड रैप सो मच. अगर हिप हॉप ना, मैं तेरे को सच बोलूं, हिप हॉप अगर एमिवे और रफ्तार का ये फंडा ही नहीं होता ना, कृष्णा इतना बड़ा नहीं होता. ट्रू. बहुत सारे आर्टिस्ट इतने बड़े होते ही नहीं थे. बहुत सारे, शायद सीधे मौत भी इतना बड़ा नहीं होता मतलब वक्त. वो कौन है पाकिस्तान वाले, ताला अंजुम, ताला यूनुस, वो भी नहीं होते. नहीं, दैट थिंक इज, वो लोग ने किल शॉट रिलीज किया था ना, ऐसे कुछ. तो बी थैंकफुल टू रफ्तार, बी थैंकफुल टू एमिवे फॉर स्टार्टिंग दिस बीफ शिट. लोगों ने हिप हॉप इतना सुना, और जिनमें थोड़ा बहुत हिप हॉप बचा भी था ना कि हम सुनते थे, कभी कभी सुन रहे, वो सबका आ गया और एक अबंडेंस में हिप हॉप आया, और उसमें कचरा ऑडियंस भी बहुत आया. बट ठीक, और वो कचरा ऑडियंस ही आज गंदा कर रहा है हिप हॉप. और ये सैचुरेट, हम लोग बात करते हैं सैचुरेट होएगा और हो रहा है ना. अब जो भड़वे बहन जो 2 साल पहले ब्लो अप हो रहे थे ना, बहुत 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, कि बहुत यूट्यूब पे व्यूज आ रहा है, ये आ रहे, वो आ रहे, गाने फट रहे, कुछ नहीं हो रहा. रियल लाइफ में ना, ऑनलाइन तुम फट गए हो, ऑफलाइन तुम्हारा कुछ है ही नहीं खेल भाई. एमिवे, डिवाइन, नेजी, ये सारे जो बड़े नाम है, रफ्तार, इनका ऑफलाइन खेल भी डेंजर है भाई. इनफैक्ट इवन कृष्णा तो पिछले 2 साल में फटा है. वो मत बोलो कि एमिवे को डिस करके, नहीं, वो स्किलफुल तो है, बहुत टाइम से कर रहा है भाई. व्यंजन स्किलफुल है. कृष्णा के स्किल पे कोई कुछ नहीं बोल सकता, ना मुफाड़ बोल सकता, ना एमिवे बोल सकता, कोई नहीं बोल सकता. तो कोई, सब लोग अप्रिशिएट करते होंगे ऑब्वियसली. तो आज जो गंदी ऑडियंस आई है ना, कि इतना भर के आज, अरे नहीं हम सीधे मौत के फैंस हैं, नहीं हम कृष्णा के फैंस हैं, नहीं एमिवे के फैंस, वो कचरा ऑडियंस हो गया है ना. अब इसमें फायदा क्या हो रहा है, आर्टिस्ट लोग का हो रहा है ना. और इसमें क्या हो रहा है, अब ये लिसनर्स नहीं बचे, अब ये बहनचोद बढ़ गए हैं लोग क्लैन में अलग अलग. इसलिए ये बहुत सारे हिप हॉप, जब तक ये फिर रैपर किसी को डिस नहीं कर रहे ना, तो तब तक उनको व्यूज नहीं आ रहे. अब इनके शोज पे लोग नहीं आ रहे. माय पॉइंट इज, ये लोग बहुत सारे मुंबई के रैपर्स नहीं, टेम्पररी ऑडियंस, टीआरपी है वो, टीआरपी ऑडियंस है. पॉइंट क्या है, तुम ऑनलाइन कितने भी बड़े नाम हो,
और तुम अगर आर्टिस्ट हो ना, वेर यू परफॉर्म आर्ट, वेर यू डू समथिंग, वेर यू कैन प्रेजेंट समवन. अब एक बेसिक इन्फ्लुएंसर क्रिएटर है, वो क्या करेगा भाई, जो फनी वीडियो एक्ट करेगा क्या करेगा वो? अगर स्केच कॉमेडी बना रहा है, सामने आके शायद एक स्केच करेगा या कुछ स्टैंड अप कॉमेडी कर लेगा, बट लिमिटेड है. बट व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट, यू आर अ सिंगर, यू आर अ ड्रमर और व्हाटएवर रैपर, तुम अपना आर्ट प्रेजेंट कर सकते हो बहुत अच्छे से, बहुत एनिमेटेड तरीके से, और तब भी तुमको लोग देखने नहीं आए ना बेंचो, तो तुम चूतिए हो. तुमने गलत बिल्ड किया है, और ये बहुत लोगों ने गलत बिल्ड किया है. इनके शो पे 100 लोग नहीं आ रहे. मेरे को बीच में बहुत गाली पड़ी वो रील डालने के बाद कि ये मुंबई के रैपर लोग रफ्तार को वहां से गाली देते हैं, रफ्तार को गाली देते हैं. रफ्तार बहनचोद मुंबई में आता है, शो पैक करता है, पैसा लेता है और जाता है. What is the difference between Indian rappers? I mean, how authentic in terms of authenticity? अभी ये रैप कल्चर स्टार्ट हुआ था यूएस में, है ना? अब जब वो यूएस में स्ट्रीट कल्चर था, लाइक द ब्लैक पीपल यूज्ड टू यू नो कम्युनिकेट विद ईच अदर, दे यूज्ड टू प्ले गेम्स, है ना? वैसे वो गेम प्ले करके वो एक दूसरे के साथ राइम करके एक दूसरे खींचते थे. जेल वेल में भी वही सीन चल रहा है. वो गया तेलन. लेट्स नॉट थिंक अबाउट द ऑथेंटिक, मतलब कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, जो भी है, बट कल्चर, इट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द कल्चर. या इफ it originated there and the way it is going on in there, जो जैसा जिस तरीके से चल रहा है, जिस बोल्ड वे में चल रहा है, जिस तरीके से चल रहा है, is it the same way in India? और इंडिया में वो ऑल्टर होके बहुत अलग तरीके से बन गया. जैसे on the basis of our culture, कल्चरल हेरिटेज इंडिया का इतना ज्यादा मतलब ज्यादा मतलब रखता है ना, कि वो हर चीज के ऊपर रहता है फिर, और उस चीज को हर चीज में घुसा देते हैं. जैसे तुम रैपर हो, कुछ भी हो, तुम्हारी रैप कल्चर को तुम ऑल्टर करो कल्चरल हेरिटेज को समझते हुए, राइट? तो क्या ये सारी चीजों की वजह से वो, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि वो हिप हॉप, क्या उस चीज में वो फील और वो उतना ऑथेंटिक और स्ट्रांग है क्या? वो सामने वाले तीसरे इंसान को बाहर से सुनते भाई व्हाट इज हिप हॉप? हिप हॉप इज समथिंग कि तुम्हारे मन की बात तुम म्यूजिक से डाल रहे हो, दैट इज उतना ही है हिप हॉप. मतलब कोई एक एक्सटर्नल चीज नहीं है. वे ऑफ हिप हॉप इज द वे ऑफ लाइफ. हाँ, ये भाई ये न्यूयॉर्क में ओरिजिनेट हुआ, ऐसे दो गैंग्स थे, क्रिप ब्लड, स्पाइडरमैन करेंगे और उनको ऐसे कर स्पाइडरमैन करेंगे, स्पाइडरमैन. भाई वो है. बट अब वो जो कहते हैं ना लॉ ऑफ द लैंड, कि जैसा देश वैसा बेस, सिंपल. तो वो तो एक आई डोंट थिंक लोग अभी सोच के भी कर रहे कि ऐसा करना है. वो हम वैसे ही ग्रो हुए हैं, उनको ऑटोमेटिक एक सेंसर है सबके अंदर. ब्रदर वगैरह देखो ना, वो गाने कैसे, क्या उसने इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स डाले बहुत. उसके पहले भी बहुत आर्टिस्ट थे. वो इज द आर्टिस्ट यार, अपाचे इंडियन, ये सारे बड़े बड़े लोग हैं. ये लोग ने अपने हिसाब से ऑल्टर किया. आज जो जितने चूतिए बड़े बड़े अपने कंट्री के, एक दो चूतिए रैपर हैं जो ये कलर का बंडाना, नीला कलर, लाल कलर बेसिकली represents bloods, which is a gang in USA, and also blue is for Crips whatever. तो ये जो गैंग कल्चर अपने इधर नहीं है भाई, ये खत्म हो चुका है गैंग कल्चर. एमसी स्टैन बोलता है ना भाई तुमको मालूम क्या, मेरे को जेल में पूरा चाकू भी ले घूमते थे भाई. वो वहां वो मारा मारी, वो गुंडागर्दी वो करता होगा. एंड वही से इस गैंग शिट है इधर. गैंग शिट मतलब वो ऐसा. अभी मेरे को एक बात बता. नो इट्स नॉट, आई अंडरस्टैंड दैट थिंग. वो तो है नहीं गैंग शिट. ये लोग जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हम ब्लड्स है ब्रो. तुम काय का ब्लड्स? ब्रूटल ब्लड किधर? काय का ब्लड्स? कुछ ब्लड्स नहीं है, कोई क्रिप नहीं है, यहाँ क्रिप्स नहीं है, कुछ नहीं है. तुम क्या नीला बंडाना, लाल बंडाना, हरा बंडाना, क्या? भाई मैं ब्लड है, मैं ब्लू कलर का लेस नहीं पहन सकता. ऐसा कुछ नहीं है. तुम गैंग शिट, तुम चाकूबाजी, मारा मारी, एरिया बाजी सब कर सकते हो. और तुम्हारा गैंग भी होगा. तुम्हारा गैंग का अलग कलर बनाओ ना, बहन कलर पिंक बनाओ ना, अपना कलर बनाओ ना. इंडिया को ये क्या तुम उधर का क्रिप्स भगवा बनाओ है पहले से. हाँ मत यार, नेशन ऑफ द कलर ऑफ द नेशन. लेट्स गो केसरी. वी लिव विद केसरी वैंशो. ये देख, आई रिप्रेजेंट इट ऑल द टाइम्स. हाँ मतलब अभी देख अपना, अभी हिंदी कम्युनिटी का कलर है ऑरेंज, भगवा. मुस्लिम का ग्रीन है, अम्बेडकर फॉलोअर, जय भीम फॉलोअर्स का ब्लू है. बट ये देयर इज सम रिप्रेजेंटेशन. ये गैंग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे, समझ रहा है? इनका ऐसा है कि हम, इनका एक तो गैंग इधर कुछ है नहीं. ये गैंग बोल रहे हैं हम यूएसए के ब्लड्स, चूतिए हो तुम. अगर स्टैन भी वैसा बोल रहा है, स्टैन भी चूतिया. बट स्टैन आई हैव सीन जस्ट लाइक हिज सीन एमीवे, आई हैव सीन स्टैन अ कपल ऑफ टाइम्स अर्लियर, जो उसका बहुत पुराना क्लिप वायरल हो जिधर पीछे एमीवे हंस रहा है और कंट्रोल ऑल डिलीट. आई हैव सीन हिम लाइक दैट ब्रो. आई हैव सीन हिम देयर, दैट क्लिप आई वाज देयर. क्या था भाई, पटेली है उसमें लड़के में, और उसने वो बहुत अच्छा लाया. अभी वो क्या करता है मालूम है? अभी स्टैन के फैंस क्या चूतिया बेंच में, ऐसा क्या बात कर रहा हूँ. एनीवे माय पॉइंट इज
चूतिए फैंस ना, अगर मैं एक बात बोलूँ, स्टैन इज बेसिकली कॉपिंग एवरीवन हु इज इन द यूएस, विच इज प्लेबॉय कार्टी, लिल उज़ी वर्ट, और 2-4 नाम लो तो बहन को तुम्हारे बाउंसर जाएगा, बट जान दो माई पॉइंट इज पूरा कल्चर वो कॉपी. अभी हैंड साइंस, लवड़ा, लहसुन, ऑलरेडी रैपर्स, द हिप हॉप, हाफ ऑफ द current hip hop community, rap community is following rock and metal culture. सबको, सब रैपर लोग को वैसी रॉक जो 80s 90s, हाँ 90s के जो रैप और मेटल और रॉक कल्चर था, वो ऐसे तुमको कपड़े पहनने हैं, वैसे तुमको ड्रेसअप होना है, सब कुछ करना है, वो तुमको स्लैंग्स यूज करने हैं. और अब वही सारे बाहर के प्लेबॉय, काटी फाटी जो भी है सब कुछ, मैं भी बहुत सुनता हूँ काटी बाय द वे, बट कल्चर वो कॉपी वही कर रहे हैं. और वो प्लेबॉय काटी और लिल उज़ी वर्ट को स्टैन कॉपी कर रहा है, ज्यादा दूर भी नहीं जा रहा है वो डायरेक्टली उधर से उधर कॉपी कर रहा है. और ऐसा हैंड साइंस बोल, कपड़े बोल, सब कुछ बोल. बट द थिंग इज, why did he get famous in the first place? Dissing whatever, but he's very skilled, he's very smart. Yes. He's just like Emiway, he's smart, he produces his songs and shit, he's very smart. उसने वो mumble culture, he made that mumble rap culture cool in our country. In our country, yes. भाई वो आज लोग उस चीज को मराठी में इंटरप्रेट करके डालना, भाई वो बहुत बड़ा बात था. I'm definitely a MC Stan fan, definitely I am, because कोई, मैं रॉक मेटल कम्युनिटी से आता हूँ, but I love hip hop. Initially it was very difficult. You're not? क्या? Obviously we are, right? नहीं मजा आता भाई, मैं तो सुनता हूँ. See, initially it was very difficult for everybody to digest the fact कि ये इस कर रहा है, बंदे को मेरे को फॉलो करना है, ये बंदे का ऑडियो सुनना, म्यूजिक सुनना मेरे को. बट he became very famous after the Big Boss thing. Big Boss thing. उसके सारे पुराने सॉन्ग्स है ना, वो इन्वेस्टमेंट की तरह निकले बाहर फिर. Exactly. वही होता भाई, वही होता. That is the thing with artist. He's copying and whatever, but he made that culture cool here. He made those type of songs very cool here in our country. And now everyone, he's just like Divine now. And someone had to do it, बहन. हाँ, someone had to. He was. वो नहीं करता, कोई और आके करता, और बहुत शायद ना अनकूल तरीके से करता, मेरे को लगता है. I think he's the best face. और शायद लोगों ने, किसी और ने भी किया ही होगा भाई, वो बाहर ही नहीं आया, उभर के आया नहीं. That is the thing, right? कच्चे खिलाड़ी बहुत हैं. ये एक होता है ना, तुम कच्चे हो लेकिन तुम्हारा जो सीना तान के खड़े रहना कि मैं कर रहा हूँ बहनचोद, जो उसने किया उसको जरूरत नहीं थी. अगर वो लिरिकल बकचोदी भी करता है. और एक चीज है कि टाइम भी सही होना चाहिए. टाइम भी सही होना चाहिए. आर्टिस्ट के साथ ये सीन है. जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी, अभी अपने कंट्री में बॉलीवुड सेलिब्रिटी से बड़े कौन है? कोई नहीं है. तुम पॉलिटिशियंस को भी गाली देके देखते हो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो. बट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लगता है ना सेलिब्रिटी, और हाँ आज वो चिल कर रहा है वो लोग के साथ. अ पर्सन जो रोड पे सो रहा था, लाइव जा रहा था, इंस्टाग्राम पे सो रहा था, 3/4 पे उधर मलाड में बेंचो कंट्रोल डिलीट पे गिग कर रहा था, नाक में पियर्सिंग करके, जो उसको देख के बोले क्या है ये छपरी चूत का लड़का है, बेंचो बाल खड़े ये वो. आज लड़के को देखो कितना बैक आ रही है अगले महीने. क्या विषय. लेकिन हक के लड़के को जो भी कर रहा है वो करेगा. बट मैं बोल रहा हूँ ना, जो आज चढ़ के चल रहा है ना कि वो कॉपी कर रहा है. Emiway has his own thing भाई. Emiway has his own thing. Stan has musically done a lot of good things, but he's copying the same. और लोगों को दिख क्यों नहीं रहा है? लोग चूतिए हैं क्या? कपड़े कॉपी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है. डिवाइन अलग हो गया. Man, I'll tell you, कुणाल, ये चीज है ना, इंडिया में चीजें चलती आ रही है बॉलीवुड से. 90s के मूवीज कॉपी हुआ करते थे पूरा बेंचो. fuck, how did I forget that? Yes. Oh shit. अब साला वो एक टाइम की मूवी, I still remember the movie, रिश्ते मूवी. अनिल कपूर की मूवी है रिश्ते, जिसमें I don't remember the name exactly. I still say रिश्ते. I doubt the movie's name, but still रिश्ते मूवी है जिसमें उसका बेटा रहता है और शिल्पा शेट्टी शायद उस मूवी में काम वाली बाई रहती है वो, जिसमें बच्ची वाली रहती है वो. हाँ. तो अरे अच्छा, उसका बेटा लंगड़ा रहता है. तो मैंने वो मूवी का एग्जैक्ट सेम सीन एक हॉलीवुड मूवी में, I don't remember the name of that movie. अरे जो लाल चड्डा वाला मूवी है वही है क्या? नहीं, लाल चड्डा वाला डिफरेंट, उसमें भी लंगड़ा रहता भागता. तो उसमें वो एक स्कूल की रनिंग रेस दौड़ रहा है, ठीक है, और उसके पैर में वो प्रोस्थेटिक लगे हैं. प्रोस्थेटिक थे क्या, व्हाटएवर द थिंग इज कॉल्ड. हां, वो जो जस्ट टू सपोर्ट एंचो केज, वो केज लगा हुआ है, ठीक है. अब वो भागना चालू किया उधर से. हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रहे. अनिल कपूर वहां से बेंचो चिल्ला रहा है, भाग बेटा भाग करके. बेंचो तो पैर से टूट गया और वो भाग के जीत भी गया. भाई वो टाइम पे भाई मेरा आंख भर आया था, मैं इतना रो रहा हूं. उसमें भाई वो छोड़, उसमें वो पूरा चैपलिन का सीन कॉपी किया है, रिमेंबर? नहीं, ये पूरा, मैं वही तो बोल रहा हूँ, ये पूरा प्लॉट कॉपीड है. अभी रुको, पूरा का पूरा लोगों के शादी के स्पीच कॉपी हो रहे इधर लाइन बाय लाइन. नहीं, मैं चलो ठीक है भाई, शादी के स्पीच चलो कॉपी कर लो भाई. नाम नहीं लेना उसका. नाम नहीं, शादी के नाम मत ले रहे. See, it's
not a Bollywood movie where you're spending money, right? Like उसने तो अपने ये रबाले में उनका मेन अरे उसने अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए बोला यार, तो वो तो चलता है यार. हम भी तो बॉलीवुड की मूवी बोल देंगे, शाहरुख खान का डायलॉग बोल देंगे. Am I missing something? किसके बारे में बात हो रहा है? रबाले में कौन है? अरे अंबानी की बात कर रहा है वो. He's talking about अंबानी भाई. बी भाई शादी का स्पीच कॉपी है, Like, लाइन बाय लाइन. कॉपी मतलब क्या भाई? It's just. अरे मैं सोच रहा हूँ कुछ और गेम. अच्छा ठीक है ओके. ठीक है सुन. हाँ तो भाई वो इतना कॉपी था ना. और कौन सा है प्लीज वीडियो बता. एंगल तक कॉपीड है भाई. अरे भाई एवरीथिंग भाई गाने ना चल अभी अपन आई गॉट योर पॉइंट. तभी अपनी ऑडियंस इतनी एडवांस नहीं थी. मेरे घर पे टीवी आई गेस लेट 90s में आया. सबके घर पे उसी 90s के टाइम पे आया. ये भड़वे बहन जो 40 साल पहले से टीवी देख रहे थे, आई गेस 30-40 साल से देख रहे थे टीवी, ये बाहर वाले लोग. तब लोगों को आइडिया भी नहीं था कि मूवी कॉपी हो सकती है या ये हो सकती है. ऑडियंस आज इतना टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है लोग, एटलीस्ट द न्यू किड्स, एजुकेटेड किड्स. ये कैसे तुम देख नहीं पा रहे हो कि एकदम. और भाई वी वर टॉकिंग अबाउट हिप हॉप एंड एमसी स्टैन कॉपिंग ना. माय पॉइंट इज, और ऐसा भी नहीं एमसी स्टैन किसी बड़े एकदम उधर के अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को कॉपी कर रहा है. सबसे मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है ना वहाँ के, उधर के लोग कॉपी कर रहे हैं. अरे इधर के आर्टिस्ट लोग केंड्रिक, वो कितना रागा ने तो बोला भी है ना, भैंचो लोग केंड्रिक लमार का फ्लो कॉपी कर रहे हैं. फ्लो कॉपी कर करके इधर वायरल हो गए हैं. सही बात है ना. क्योंकि एक होता है कॉपी करना और एक होता है इंस्पायर होना. एवरीथिंग बाय द वे एवरीथिंग इज अ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी ऑफ कॉपी कॉपी, वो तो फैक्ट है. बट एक होता है ना भैंचो कॉपी पेस्ट मत करो ना पूरा. थोड़ा इंस्पायर, थोड़ा कुछ किया तुमने, ट्वीक किया, ये किया, लेकिन सब कुछ तुम भैंचो सीधे कॉपी और पेस्ट कर रहे हो तो लफड़ा ही होएगा. सही बात तो थोड़ी सी ओरिजिनलिटी रखो और फिर चलते रहो, जो होता है होते रहो. और सिंपल बात है. अभी हिप हॉप मेरे को लगता है ना एक टाइम बाद खत्म होएगा, थोड़ा फिर होएगा, क्योंकि इतने रैपर गंदे. तो कोई नया आएगा ना फिर. रैपर unless a new wave is coming. New wave, I don't think so. I think the wave is, this wave will go from hip hop to somewhere around rock. Because the EDM wave has been, I think खत्म हो चुका है. EDM wave जो 2011-12 wave है ना भाई. अभी वो तो भड़वे भेंचो उनको EDM, वो नॉर्मल EDM बजाओ भेंचो और अविची और टेक्नो बोलो तो उनको हाँ भाई टेक्नो ऐसा हो जाएंगे. तो चूतिया ही है, इनको जान दे अभी. नहीं, मुझे लगता है ना कि अब साउंड चेंज हो रहा है. अब जितना मैंने सुना है, जितने, अब ये सच है झूठ है पता नहीं, बट इनसाइडर से ही न्यूज़ है कि जितने भी मेजर लेबल्स है कंट्री में अभी सब लॉस में. और उसीलिए नाउ यू सी कि रीजनल म्यूजिक काफ़ी ज़्यादा आ रहा है. राइट. बिकॉज पहले कैसे होता था, हम सिर्फ कमर्शियल सुन रहे हैं, हिंदी म्यूजिक सुन रहे हैं, बट नाउ पीपल वांट टू कंज्यूम कंटेंट इन देयर रीजनल लैंग्वेज, जो जिसमें बात कर रहे हैं. गुलाबी साड़ी कितना बड़ा फटा, हाँ सब सुन रहे हैं. आई थिंक ना वो जो रीजनल ना, जब जो रीजनली था, अभी साउथ में जो कल्चर था वेंचो लोग चाह रहे थे मूवीज देखने साउथ के मूवीज, और साउथ में साउथ के मूवीज दबा के चल रहे हैं. पीपल आर स्टार्टिंग टू फाइंड प्राइड. हाँ आज वो अपने thing. मैं तो चाहता हूँ भाई, अभी यूपी में भी लोग भर भर के भोजपुरी मूवीज देखने जा रहे हैं, विच इज वेरी मच रिकॉर्डेड इन हिस्ट्री. लोग कुत्ते जैसा मूवी देखने जा रहे हैं. साउथ में भी लोग कुत्ते जैसा मूवी. अपने मुंबई कंसिडर करें, मुंबई महाराष्ट्र लोग नहीं जा रहे भैंचोद. आज मराठी मूवीज, रीजनल मूवीज इतने डेंजरस मूवीज है. पिछले 10 साल के ही देखो, ज्यादा मत देखो, पिछले 10 साल के मूवीज देख लो. बट कहाँ फेमस, क्या कम मराठी लोग है क्या भैंचोद मुंबई में? गया सब भैया लोग आ गए, गुज्जू लोग आ गए, ऐसा तो नहीं है. हाँ आप यही लोग नहीं जा रहे देखने के लिए. मुंबई के लोग ही मराठी जो अपने आप को बहुत प्राउडली मराठी बोलते हैं, ये लोग जा रहे हैं देखने के लिए. सही बात. अगर वो लोग ही जाएंगे ना तो फट जाएगा इंडस्ट्री. ये क्रिटिसिज्म में अटके पड़े हैं. बॉलीवुड को तो गांड फाड़ के गांड चाट के सब लोग मूवीज देखने पहुंच जाते हैं. उतने ही शिद्दत से. मैं 10वीं में था शायद, 10वीं पास की थी भैंचोद, मैंने शाड़ा देखी थी टीवी पे, झाड़बर के श्रवण के घर पे, इतनी टीवी पे मेरा फट गया था दिमाग. बिकॉज वही फेस से हम जस्ट निकले थे. एंड दैट लव, बीपी मूवी थी ना बालक पालक जब आई थी ना, हम लोग पेन ड्राइव में ढाप के साइबर कैफे से मूवी डाउनलोड करके इलीगली जाके हमने अपना टीवी पे दे लगाया भाई. आई रिमेंबर हैड दिस झाड़बर का फोन विच वाज सैमसंग, सम स्मॉल फोन, ओके, टच स्क्रीन आया था. I found the cast वाला people, the actors. I messaged them. I was so moved कि बेंचोद क्या मूवी बनाया है. मैं उनको मैसेज कर रहा हूँ. माई फ्रेंड वाज वर्किंग इन द इंडस्ट्री, वो जब एडी वेडी करने गांड चाटने जा रहे यहाँ वहाँ कर, मैं उसको ना रो के भाई मेरे को मिलने का भाई, समझा, फैन बॉय. फिर वैसी वो शिक्षणाचा आईचा घो, वो भी मूवी हिट कर गई थी भाई, क्योंकि वो एरा अलग था. तारे जमीन पर तभी आई थी, ये मूवी तभी आई थी. थोड़े टाइम बाद 3 इडियट्स आ गई.
रीजनल तू बोल रहा है Now, मतलब do यू you आर ट्राइंग think टू से Bollywood is, I mean, in terms, not just in terms of music, but क्या वो मूवी प्रोडक्शन के हिसाब से भी क्या बॉलीवुड उभर रहा है? जैसे आई व्हेन आई सी दैट पीछे से दूर से देखने वाली बात आ रही है ना, तो ऐसे दिख रहा है ना कि जैसे साउथ अभी बॉलीवुड और साउथ को कंपेयर करने लग गए और बोलने लगे हाँ। कि साउथ बॉलीवुड से आगे निकल रहा है। हाँ तो अब तुम बॉलीवुड की मूवीज देखो सारे, तो उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन, सिमिलर स्टोरी लाइन साउथ की तरह रह रहा है हाँ आजकल ऑब्वियसली ऑलमोस्ट सारे मूवीज में, वो चल रहा है ना, है ना? वो चल रहा है ना। तो अरे साउथ के एक्टर्स को ले रहे हैं। साउथ के एक्टर्स को भी ले रहे हैं, यहाँ के एक्टर्स साउथ में काम कर रहे हैं, मतलब ऑब्वियसली दैट्स अ थिंग। पर अभी तुम मतलब बॉलीवुड का सबसे बड़ा लूप होल है ना उसके ग्राफिक्स के साइड में, वो ग्राफिक्स के ऊपर जो एनिमेटेड मूवीज आ रहे हैं या फिर साईफाई मूवीज आ रहे हैं, इधर तो साईफाई मूवीज बनते ही नहीं है। नहीं बन 2-4 बने बॉलीवुड होंगे। में कोई साईफाई मूवीज ही नहीं है। हाँ मतलब वो ब्रह्मास्त्र वाज द लास्ट थिंग Oh एंड God, it should be the last thing, बहनचोद, अगर ऐसा है तो। Because it's the मैंने worst देखा ही movie नहीं ever, है। बहनचोद। हाँ, it's the worst। मैंने 15 मिनट स्टार्टिंग के देखा भाई। Fuck it, बहनचोद। It's not going to work. Like, why is it that being such a big industry? नहीं भाई पैसा नहीं यहाँ है, पे पैसा नहीं है। तो पैसा ना जो मैं ये मेरी बात, मेरा माय फ्रेंड हु हैज वर्कड विद आई थिंक बाहुबली के ये क्या बोलते हो भाई 500 करोड़ बोल रहे हैं वो लोग। भाई, वो They are- बोलने की बात होती है ना, बट इन द नहीं, एंड लगा आर्टिस्ट रहे को हैं। पैसे लगा रहे होंगे। The point is तुम प्रोडक्शन में तो लगा रहे हो ना। The whole point is तुम्हारे पूरे बॉलीवुड में क्या एक मूवी तुम एक अच्छी साईफाई मूवी नहीं बना पाते हो? भाई चलो रिस्क मार्वल छोड़ दो, रिस्क होगा डीसी छोड़ दो साइड में। अभी मैं तेको बोलूँ तो अभी तक ड्यून को बहुत क्रिटिसाइज किया, ठीक है? ड्यून चैप्टर 1 चैप्टर 2 को बहुत क्रिटिसाइज किया है भाई। वो इतनी जबरदस्त मूवी है ना, लाइक व्हेन यू सी कि हाउ 1000 years from now it can be the perspective they are trying to Perspective, put in right. the picture। राइट। बहनचोद वो देख के समझ में आता है कि कितने छोटे छोटे डिटेल्स के ऊपर कितना प्रिसाइसली काम कर रहे हैं। इट डजंट लुक लाइक साईफाई, इट लुक्स लाइक समथिंग रियलिस्टिक इज हैपनिंग देयर। और ये चीज इन लोग यहाँ पे सिर्फ जादू क्यों क्रिएट कर रहे हैं भाई? नहीं कर पाएंगे नहीं ना कर भाई। पाएंगे भाई। ऑडियंस अब देखिए यहाँ पे उनकी भी पूरी गलती नहीं है, क्यों ट्राई किया लोगों ने, नहीं try किया। ऑडियंस नहीं They किया है couldn't ट्राई। try। ऑडियंस को देखना नहीं है, ऑडियंस देखता नहीं है। ऑल्सो नैरो डाउन करके जब जिस एक जो जीएफएक्स क्या बोलते हैं उसको, वीएफएक्स सॉरी जीएफएक्स बोल रहा हूँ मैं। वीएफएक्स आर्टिस्ट का उतना पैसा ही नहीं आ रहा है। हाँ पैसा उसको तो मालूम वो है कर मेरी लेंगे। अभी आई थिंक देयर आर कुछ तो बहुत बड़ी मूवी, वो कोई तो एक बैंड्रा का अंकल जो वीएफएक्स आर्टिस्ट है उसने वो बहुत बड़ी मूवी, कोई तो बहुत बड़ी मूवी बनी यार बीच में आई गेस। बहुत सारा काम इंडिया में ही होता इंडिया में है। हो रहा है भाई, उनको मालूम है हमारी कदर वहाँ हो रही है, तो यहाँ पे लोग पैसा नहीं दे रहे। अभी ये मेंटालिटी है ना भाई, मास वाला चीज चल रहा है। ये क्यों ये बनाएंगे पिक्चर जो भी साईफाई वगैरह, क्योंकि उनको मालूम है नहीं चलने वाला, ये बर्बाद होती है भाई। हाँ सही बात। क्योंकि वो कितना भी 500 करोड़ लगा लो, 1000 करोड़ लगा, भैंचो तो वो वीएफएक्स आर्टिस्ट के पास भैंचो 10 लाख ही आना है। वो बोलेगा क्या करूँ, भैंचो 10 लाख का 50 लाख तो मेरे को उधर यूएस की मूवी बना लो। We do not even have the evidence कि बहनचोद को एक मूवी ऐसी नहीं आई है ना, है। मूवी छोड़ दे। जब आदमी पैसा लगाने को भी रेडी नहीं होता, जिस तरीके अभी बाहुबली का तू वो सीन देख ले भैंचो, तो बुल वाला कितना घटिया वीएफएक्स है वो, कितना घटिया वीएफएक्स है। हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई वो साउथ की मूवी से। नहीं भाई, साउथ क्या बजट था मूवी का, वो बहुत वास्ट बजट था। मेरा फ्रेंड ने मेरे को बताया ना भाई, वो वीएफएक्स आर्टिस्ट तक पैसा नहीं आता है, या वीएफएक्स आर्टिस्ट उतना वो डिपार्टमेंट को ही पैसा देते नहीं होंगे। आज नेटफ्लिक्स वगैरह है, कुछ चीज़ें हैं जो बोल्ड होके जो बड़ी प्लेटफॉर्म से तो आज थोड़ा एफर्ट ले रहे, बट रिलीजिंग इन अ थिएटर इज अ वेरी बिग डील, वेरी बिग डील। उधर भी पॉलिटिक्स आता है ना। कि बेंचो इतना चूतिया दिख रहा है मेरे मूवी का एक अरे part। सब पता है ना, अरे ये लोग ने क्या नहीं बेचा है भाई, कि लोग भूल जाते हैं, 2 घंटा मूवी देखते हैं, शाम तक खाना खा लिया खत्म। ओके, किसको क्या झट याद रहने वाला है, थोड़ा क्रिटिसिज्म कर लिया आजकल तो बट यू मीम आल्सो कल्चर थिंक एज अ प्रोड्यूसर नो, तो क्यों रिस्क लेगा? Risk अब लेगा। ये मैं म्यूजिक के बारे में बोल सकता हूँ Simple. कि अब जैसे एक गाना चल रहा है, अब आर्टिस्ट कोई एक्सपेरिमेंटल गाना मैं बनाऊँ है ना, उसमें बहुत मैंने ये डाल दिया वो डाल दिया, मेरा दिल खुश रहेगा उसमें। बट व्हेन आई गो एंड लुक एट इट एज कि अब मैं पैसे कैसे कमाऊँ, नहीं कमाने वाला। ऑडियंस को नहीं, क्लासिकल कौन सुन रहा है? इतने तोड़ सिंगर है जो इतने सालों से सीखे गा रहे हैं, वो क्वालिटी उनकी बाप है, वो मैच ही नहीं है। बट कंज्यूमर को ही नहीं चाहिए ना, वो कंज्यूमर कहता है हाँ ठीक है, मार्केट डिमांड नहीं है उस चीज मार्केट डिमांड नहीं है। एंड आई थिंक एवरी म्यूजिशियन, एवरी आर्टिस्ट शुड लर्न हाउ टू बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन, है ना। यू शुड नो बिजनेस। अभी शुभम सीखा है ना 4 चीज़ें कि डील कैसा। अब बहन जो क्लास थोड़ी गया था कि गाना बनाने का 4000 लेने करके, फिगर आउट किया चीज़ें। अभी से कोई सेम गाना बनाने का 4 लाख भी लेंगे, यस। है ना। कोई इंस्टीट्यूट होगा वो 4 लाख 40 लाख भी लेगा।
अभी ही इज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, अभी जिसको ही तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बोलेंगे। इंडिपेंडेंट तो बेंचो खुद फिगर आउट कर रहे हैं 4 चीज़ें। अगर वो लेबल को साइन होता नहीं होता, वो उसको मालूम है कि लेबल को मेरे को कितना देना है, लेबल मुझे क्या ऑफर कर रहा है, मेरा इसमें फायदा क्या है, लेबल का फायदा क्या है। और एल्स अगर लेबल नहीं भी दे रहा है हाँ, तो मैं उसके साथ किस केस किस के तरीके अंडर से कोलैब करूँ। हाँ साइन हो, ठीक है लेबल, क्योंकि मोस्टली नहीं देता कोई लेबल पैसा नए आर्टिस्ट को। वो कहेगा भाई मेरा लेवरेज ज़्यादा है, मैं तेरे से बड़ी चीज़ हूँ, मैं तुझे व्यूज़ और ऑडियंस ला के दूंगा, मैं पैसे नहीं दे रहा। बट व्हेन यू थिंक एज देम इट मेक्स सेंस, क्योंकि वो आपको वैल्यू ला के दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट हो रहा है, आपका नाम हो रहा है, इवेंचुअली यू विल स्टार्ट टू मेक मनी फ्रॉम लाइव शोज। सिंपल, यस, वो है। हाँ, लेट्स कम टू दैट कि बहुत सारे लोग ना, इनका बड़े बड़े लेवल पे गाना रिलीज हुआ है, जो बहुत अपने 4 दोस्तों में शाना बनते हैं, वो किस तरीके से गाने रिलीज होते हैं, ही नोज इट। तो कुछ पैसा नहीं मिलता। हाँ भाई, कोई होता। पैसा नहीं मिल रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब बोल रहे हैं भाई मेरा गाना टी सीरीज पे रिलीज हुआ, पैसा नहीं मिल रहा है। 12,000 के शोज कर रहे हैं क्लब्स में। मैं खुद क्लब गिग्स में छोटे मोटे बैंड्स को 12,000 15,000 इतना ही मिलता है भाई। तो अगर कोई भी गिटारिस्ट ड्रमर सपने देखते हैं ना कि करोड़पति बने, ये स्ट्रगल लाइफ है। व्हेन इफ यू बिकम अ म्यूजिशियन, यू ईदर यू बिकम अ वेरी गुड म्यूजिशियन, स्टार्ट प्लेइंग सेशंस, और फिर तुम बड़े आर्टिस्ट, बॉलीवुड आर्टिस्ट, उधर भी 15,000 20,000 25,000 पर गिग वैसा तुमको मिलता है अगर तुम अच्छे आर्टिस्ट का प्ले करो। ऐसा ही है। फिर अगर तुम कट के निकलते हो, तुमने ओरिजिनल म्यूजिक किया है एज अ सिंगर, तो तुम्हारा फटोगे तो तुम्हारा बात ही अलग है। सिमिलरली अनुव जैन ने रिसेंटली इंटरव्यू बोला, उसने 10,000 कोई तो शो के लिया था, आज वो 30-40 लाख रुपए चार्ज कर रहा है। ओरिजिनल म्यूजिक इज ओरिजिनल, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है भाई, ग्रोथ। हाँ, वो इंक्रीमेंटल नहीं है कि धीरे धीरे जाएगा सीधे। वो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, और एक ही बार में होगा तो बहुत ही ज्यादा होगा। और अभी तो काफी इजी नहीं बोल सकते, बट देयर आर अभी रिसोर्स और हो गए हैं कि, और क्या होता है ना, बहुत सारे लोग ना अभी भी पिछले 2-4 साल से ना जो सोशल मीडिया पे ब्लो अप हुए हैं, वो भी उस चीज़ को कैपिटलाइज नहीं कर पाए हैं, कि कुछ चूती हैं। इसलिए मैं बोला, तो आई सेड दिस थोड़े टाइम पहले मैंने बोला कि बिजनेस साइड अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा तो चाहिए तुमको। तुम चूतिया मत रहो यार। तुमको कोई आके बेच के, तुम्हारा मार्केट वैल्यू 10,000 का है, तुमको मार्केट वैल्यू मालूम ही नहीं है। हाँ, तुम 10,000 ले रहे हो, कोई तुमको 2 लाख में बेच के चला गया और तुमको आइडिया ही नहीं है। ऐसे इंस्टेंसेस बहुत लोगों के साथ होते हैं। तुमको चीज़ें पता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी। सामने वाला मैनेजर तुमसे नहीं रख रहा है तो उसको बोलना, ले भाई, तेरे को जितना तेरा कट लेना है, मेरे को मेरा मार्केट वैल्यू तो बता। डो नॉट फॉल इन द ट्रैप ऑफ बिकमिंग अ रॉक स्टार, बिकमिंग अ वेरी बिग सिंगर एंड दिस एंड दैट इज imaginary and manifestation or whatever other that bullshit is. That is very nice, that is, those things motivate you, cool, no one. But also abhi to it is very easy. YouTube has done everything. Try to learn the business side of it. Try to sell yourself. सही बात है। Learn how to sell yourself. See, majority of the time what happens is people they don't want to take the lead. हाँ, ज़्यादातर ये होता है कि तुम लीड, अभी सब शुरुआत तो उसी से होती है ना। व्हेन यू टेक द लीड, व्हेन यू टेक द इनिशिएटिव, व्हेन यू टेक द कॉल कि भाई मेरे को कुछ करना है, उसके बाद तुम पीछे नहीं हटते हो ना। जब एक छोटी चीज़ आती है तुम्हारे सामने, देख, जब कोई एक बड़ा इंसान तुमको सामने से ना नीचा दिखाने की कोशिश करने वाला रहता है, व्हेन यू डूइंग समथिंग, देयर आर पीपल हु विल कम अगेंस्ट यू, और उधर 4 लोग ऐसे ही दब जाते हैं, शुरू ही नहीं करते हैं। ट्रू। और जब ये इनिशियल इनिशिएटिव तुम्हारा कि तुमको शुरू करना है, ये चीज़, ये बहुत अनकंफर्टेबल चीज़ होती है, उधर ही स्टार्ट नहीं हो पाता है भाई मेजोरिटी ऑफ द लोगों का बिजनेस पर्सपेक्टिव तो। और वो जो शुरू हो जाता है ना, वो भी शुरू नहीं करने वाला होता है। वो एक बार बस निकल जाती है, उसकी गाड़ी चल देती है, और तब वो बोलता है, भेड़ का लोड़ा, तू कौन है बेंचो मेरे को बोलने वाला, तेरी गांड में अब मारता हूँ। उसमें वो हिम्मत नहीं भी होगी, पर वो हिम्मत आ जाती है बेंचो। सही बात है। तो वही वो 4 लोगों में नहीं आती है। वही डिफरेंस है विच आई थिंक डिफरेंशिएट्स बिटवीन जो कर जाते हैं और जो नहीं कर पाते। अब जुबिन नौटियाल भाई वो अभी फेमस हुआ है, रगड़ कब से रहा है? हाँ, कब से कर रहा है वो भाई, माता वाता के सॉन्ग्स है भाई इसके तो। अरिजीत सिंह, अरे बाकी बहुत से नॉर्थ के तो बहुत लोग, नॉर्थ के तो बहुत लोग जो जगराता वगैरह में गा के फेमस हुए हैं। अभी आई हैव फ्रेंड्स, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड, ही इज डूइंग हिज शिट इन हिज इंडस्ट्री। हम गिग्स करते हैं साथ में, हम लोग सब करते हैं, हम भी सब कर रहे हैं। क्लब गिग्स में ना आई हैव सीन बिग नेम्स ऑन ऑनलाइन आर प्लेइंग ऑन द सेम कमर्शियल वाइज, पैसे वाइज सेम काम कर रहे हैं। तू चूतिया है क्या? तू इतना बड़ा नाम है, हाउ कैन यू डू दैट? आर यू स्टूपिड और योर मैनेजर इज वेरी स्मार्ट? ये सिंपल है। तेरा मैनेजर बहुत स्मार्ट है, जो तेरे को शायद बेच भी रहा होगा, तेरे को मालूम नहीं है। आई हैव फ्रेंड्स इन द इंडस्ट्री, छूती है भाई, वेरी स्किल्ड। और एक बात है ना, मैं बोल रहा था कि आर्टिस्ट को ना ऐसा लगता है ना कि भैंचोद मेरे जैसा कोई गा रहा ही नहीं है, मेरे से कोई बजा रहा ही नहीं है। खुल थोड़ा सेल्फ क्रिटिक हो जाओ। तुम्हारा एक्सट्रीम स्किलफुलनेस जो है ना, कि इतना स्किल्ड है और मेरे को तो मिलना, ऐसा नहीं होता भाई।
एक 30% स्किल्ड होगा ना, अगर इज अ वेरी गुड, ही नोज बिजनेस ना, वो बेच देगा अपने आप को, और स्किल आज नहीं तो कल डेवलप हो जाता है, समझ रहे हैं ना? वो क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, दैट्स अ फैक्ट. When talent stops working hard. हाँ, सिंपल. भाई वही फिगर आउट करो, I नेटवर्किंग also करो. feel you just have to be at it. क्योंकि अभी देख, अब मैं सिंपल केस स्टडी, अरिजीत सिंह सबको लग रहा था टॉप पे, कोई और गाना गा रहा ही नहीं था. अरिजीत सिंह ने ब्रेक ले लिया, जुबिन नौटियाल नेक्स्ट था, वो आ गया, उसने उसकी जगह बना ली. ठीक है, वो बना पाया क्योंकि वो वहाँ था, ऑलरेडी था, वो रुका था कि आएगा टाइम आएगा. सिमिलरली हनी सिंह था, हनी सिंह ने ब्रेक ले लिया, बादशाह को वो जगह मिल गई. राइट. बैड बॉय, इशो बॉय, बादशाह. तो ऐसा नहीं है कि बादशाह काम नहीं कर रहा था, बादशाह काम कर, जगह था वो उधर. एवरीवन इज देयर. He sees the opportunity. अब वो तो बहुत क्या वो होता रुकना है, ही लोग पड़ेगा हारते हैं भाई. सिमिलरली ट्रेडिंग में ही बोल लो, तुम करते रहो ना, कभी तो जीतोगे. बहुत लोग छोड़ जाते हैं. ड्रीम 11 पे टीम बनाओ. कभी तो जीतो इंडस्ट्री में भाई रगड़ वो रहे पानी भाई. वाला, अब मैं पानी वाला ऐसे नहीं कह रहा हूँ, एक दोस्त था मेरा, वो पानी मारने आता था एक जगह पे. भाई वो समीर, हाँ क्या नाम था उसका, समीर ही था शायद. भाई वो 80,000 जीता है ड्रीम 11 पे. वो 2 साल से कर रहा था, फाइनली उसका लगाया प्रमोट कितना? ड्रीम 11. हाँ, पैसा नहीं मिल sorry. रहा हमको ड्रीम 11. सट्टेबाजी नो सट्टेबाजी. लेट्स भाई, सट्टेबाजी से वी वर अराउंड हिप हॉप, वी वर अराउंड आर्टिस्ट. लेट्स कम टू स्टेक. रफ्तार को फैंस गाली दे रहे हैं कि स्टेक क्यों कर रहा है. स्टेक इज अ बेटिंग प्लेटफॉर्म. हाँ, वो ड्रीम 11, या मैं कंपेयर नहीं करूंगा, हाँ वैसे ही है, वैसे सिमिलर है. हाँ कि आप बट पैसे ये लगाओ. ड्रेक, मेरे को ये ड्रेक से ही मालूम पड़ा. बट ठीक है, मतलब सट्टेबाजी प्रमोट करना, मतलब वो अपने इधर भी अपने स्पोर्ट्स को नहीं कर सकते ना शायद. नहीं होता है, अपने स्पोर्ट्स में क्रिकेट होता है. क्रिकेट पे होता है. हाँ. अच्छा, तो रफ्तार बहुत गाली खा रहा है उस प्रमोशन को लेकर. बट आई थिंक अब क्या है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स सब कर रहे हैं. ऋतिक रोशन कर रहा है. ऋतिक रोशन की पिक्चर नहीं देखने जाओगे क्या? तुमको फ्रस्ट्रेशन किस बात का हो रहा है? रफ्तार गाने नहीं डाल रहा है, इस बात का फ्रस्ट्रेशन है कि रफ्तार स्टेक प्रमोट कर रहा है. तुम सिर्फ कंधे पे बंदूक रख के गोली मार रहे हो. सही बात है. अभी रफ्तार गाने डाल रहा होता तो शायद तुम ध्यान में नहीं देते ये सब चीज़. और ही इज मेकिंग हिज बैग, लेट हिम डू इट. उसको जम रहा होगा, कर रहा है. मेरे अब आस्क मी पर्सनली, अब एक वेव चल रहा है कि सट्टेबाजी का प्रमोशन मत करो. मुझे भी मैसेज आया था रमी मम्मी का, कोई तो चल. मुझे नहीं लग रहा है सही, मतलब मेरे को मन नहीं कर रहा है. आप लोग भी जीत सकते हो. बहुत पैसा जीतोगे गाइस, आप लोग भी जीत सकते हो. इसमें अकाउंट बनाओ, आप लोग भी जीत प्रोमो जाओगे. कोड लगाओ. मेरा प्रोमो कोड लगा के आपको 100 रुपीज का वॉलेट में कैश आ जाएगा. Only now I got it. हैशटैग वड़ापाव कुणाल मेरे को @50. अभी समझा हुआ. वी टॉकिंग अबाउट बेंचो बिन मतलब डिस करते रहते तो हैं भाई भाइयों, अपन. आप लोग भी ये ऐप इंस्टॉल करो. मेरे अकाउंट्स, मेरे प्रोमो कोड से मेरे जैसे बहुत सारे भाई जीत रहे हैं. आपको दिन में बस 5 मिनट निकालने हैं. This is how they're doing it. That's how they're doing it. एरोली की परी. मैं एरोली की परी का सोच रहा था. कौन है? भाई कम ऑन, एरोली की प्रमोशन. नाम ले लो, नाम लेके एरोली की बीप करेंगे. परी का भी तो तूने बीच में उसने डाला था ना. उसका बोला ही नहीं मैंने. यार अच्छा नहीं क्या? कौन है एरोली की कौन? परी? शी कौन? कौन? हो? हमको नहीं पता. आयरन में परी. हमारी तो आयरन में परी भी है. अरे हाँ, कुछ नहीं बोलेंगे. भाई आयरोली में बहुत परियां हैं. बहुत परियां. ठीक. टिकटॉकर परियां. अगला पॉडकास्ट. 10 नीता 11 शिलीमकर, मिलियन. नाम लेता ना नीता शिलीमकर सबसे बड़ी परी है एरोली. यस, ए टाउन भाई ब्रो. एकदम भाई मेरी फ्रेंड है, उसको डुक्कर बोलती हो. भाई मेरे को तो सुंदर लगती है. फ्रेंड का नाम ले. हाँ नहीं फ्रेंड का मेरे को तो सुंदर लगती है नीता शिलीमकर. नीता शिलीमकर. सबका अपना अपना चॉइस है, मतलब ठीक है ना. अभी क्या सब्जेक्टिव है भाई, सब्जेक्टिव है भाई. ठीक है भाई, लेकिन भाई पटेल, हाँ उनको मानना पड़ेगा. रोहित जिंजूर के, क्या नाम है? जिंजूर के. भाई वो नीता का कार तो मेरे स्टूडियो के बाहर रहता था. भाई मर्कडीज, बहन के लौड़ो, मर्कडीज चला रही हो. तुम लोग टिकटॉक पे गाली दे रहे हो उसको. मार्च शुदा हो तुम लोग. चलो मर्कडीज. अकाउंट में 500 रुपए का रिचार्ज नहीं कर पा रहे हो. बेंचो 5000 की बेंचो पेट्रोल जला रही थी. नीता शिलीमकर का तो पता नहीं, छावा उसका छावा है, मतलब लिटरल सेंस में. हाँ भाई वो यूरोप वाला. बेंचो लंबा चौड़ा दिखने में मॉडल लाइक. पंजाबी है ना वो. पता नहीं कुछ अरे भी क्या होगा. पता भाई. आयरोली में साइड से जा रहा बहुत अच्छा था, हुआ है. हम में चुल कि देखे तो इसकी हाइट किधर है. हम जल्दी जल्दी चल के जा रहे हैं उसके साइड से कि देखे तो हाइट कितना है इसका. भाई ये क्या सुंदर दिखता है लड़का. एकदम है हीरो. बहुत अच्छा दिखता है. हीरो है. और वो रोहित जिंजूर के, वो भी इंडस्ट्री हक है में भाई, चला हक गया. है. ये लोग टिकटॉक के क्रिंजी वीडियोस बना रहे होंगे, बट इन्होंने पैसा बनाया भाई उस चीज से, और कुछ जिंदगी बेटर कर दी अपनी. और क्या चाहिए लाइफ में. सही बात है. अब रोहित जिंजर का तो एक्टर भी बन गया. अच्छा एक्टिंग कर रहा है भाई.
किधर? म्यूजिक वीडियोस में करते हैं ना भाई, वो भी बड़ी बात है यार। म्यूजिक वीडियोस में सही भी बात है। सिर्फ अच्छा दिखना बात नहीं होती, अभी अपन तो अच्छे दिखते भी हैं। रिएक्शन बॉय ना वो। रिएक्शन बॉय विद BOI नॉट Y। BOI। एल्विश भाई भी कर रहे हैं। एल्विश हाँ, भाई क्या? म्यूजिक वीडियो। अरे हाँ वो चूतिया म्यूजिक वीडियोस। तुझे क्या स्नेक की याद आ रहा है क्या? सांप से आगे मैंने बढ़ो क्या यार। सुना एल्विश भाई का कुछ UPSC वगैरह क्लियर किया, कोई तो ऐसा कुछ तो एग्जाम दिया भाई। नहीं यार, ऐसे कैसे हो भाई गया? स्टैंड अप वाला वीडियो नहीं है यार ये। अच्छा प्रो Fuck. Let's talk about Shubham's love life match. शुभम्स लॉ का स्विच था भाई। आहिला शुभम्स लॉ डायरेक्ट नहीं यूपीएससी। नहीं वो भाई वो जो रॉकस्टार में क्या डालोगे वो? रॉकस्टार में जब तक डालोगे दिल नहीं ना टूटता जब तब तक तक। दिल नहीं टूटेगा ना, हाँ। संगीत नहीं निकलता। ना तो शुभम तो ये ऐसी हुआ था क्या कुछ? शुभम ऐसा कुछ है क्या? भाई मेरा तो बहुत कुछ हुआ है। कि आपकी जो करंट सीनारियो चल रहा है उसको ऐसा कुछ बॉदर तो नहीं होगा ना कि आप अगर नहीं, मैं पास्ट के बारे में बात मैं करोगे काफी ट्रांसपेरेंट हूँ गाइस। मैं काफी ट्रांसपेरेंट हूँ, मैं सब बता देता हूँ। भाई 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 गाइस मैं मौन व्रत ले रहा हूँ इस समय से। Oh God. अगले 5 सेकंड में मौन व्रत शुरू हो भाई रहा तुम्हें है। वीडियो डिलीट करने को बोल दिया बाद में। वीडियो डिलीट नहीं होती भूल भाई। गया क्या मैं सेंट्रिस्ट हूँ? हाँ, मैंने बोलता बैकग्राउंड में भी चलती रहती कभी कभी वीडियो। नहीं भाई। सच्ची कांड। व्हाट आई फील कि थोड़ा स्ट्रगल रहना चाहिए, क्योंकि तब जब अच्छी चीज मिलेगी हाँ सही लगता है। स्ट्रगल रहना चाहिए। देखा कैसे भाई, लेकिन पॉलिटिकली सब- करेक्ट आंसर। हाँ लेकिन सब लोग स्ट्रगल मत लो। बाय द वे एज एन आर्टिस्ट लाइक टू बी नहीं भाई मैं तो No एंजॉय kidding. करता हूँ, मुझे हाँ तो मतलब मजा वो आता है। दर्द अभी मेरे को मालूम आई नो वेरी नाइसली आई नो वेयर द सॉन्ग्स हैव कम फ्रॉम बट लेट्स जैसे जिंदगी में हो गया बहुत दर्द, ठीक है, आके इधर कर रहा हूँ, अरे ठीक है अच्छा वो गाना मिल गया, हाँ राइट ये ठीक है भाई चिल्ले जिंदगी, कोई सीन नहीं है, जो हो रहा है सही हो रहा है। he has made songs very nice songs which was very relatable. A few songs are very relatable. भाई वो Obviously तो रो also- दिया था, याद है? हाँ, I'll tell you. फनी स्टोरी ओपन Let's माइक go. गए, मैं कुणाल आशीष, मोटी याद आ गई बहन चो। आई वाज ट्राइंग नॉट टू मेंशन इट। Who did that? On camera भाई ये देख, that's the beat. Fuck it. अपने Got पास the भी beat. टाइगर श्रॉफ है। भाई तुम दोनों में से कोई हो सकता है यार। I didn't do it. बट आवाज आया तो भाई स्मेल नहीं आती ये है। एक सिग्नल है जिससे पता चले कितने लोग पूरी वीडियो देख रहे हाँ पता करो हैं। Know बहन that, चो। right? Anyway yeah sure. हाँ तो फिर हम ओपन माइक में गए, मेरा एक गाना था कह भी दो, हाँ। तो मैंने वो गाना परफॉर्म किया, सामने तेरे जैसा एक लड़का था, बॉडी बिल्डर हट्टा कट्टा, खत्म हो गया, मैं आया, रो रहा है वो, मैं टेंशन में कि ये क्यों रो रहा है, बॉडी बिल्डर लड़का रो रहा है एकदम गुड़ू 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 आंखें लाल। मैंने कहा क्या हो गया भाई गाना बहुत अच्छा था भाई, भाई बहुत अच्छा। मैंने कहा, अरे थैंक यू भाई। नहीं भाई आपने बोला ना कि तू बहती रहे मैं साहिल नहीं तेरा, मैंने हाँ मेरा नाम साहिल है भाई। भाई हम लोग हंसने को आ रहा है literally। भाई और साहब इससे उसको बच- लग गया रहेगा भाई अलग Obviously से। भाई भाई हम ऐसे कर, और हंसने आ रहा है हम भाई। एक दूसरे को देख, ओके भाई thank भाई you एक तो गलत टाइम पे हंसने की गंदी आदत है। बेंचो में बच्चा गिर रहा है हंस रहा हूँ। तो हम लोग कितना इंस्टेंसेस हुए बेंचो बच्चा गिर रहा है हंस रहे हैं। तो वो गाने का लाइन अगर बहुत सुनो कह भी दो सुनो तो उसमें क्या है, तू बहती रहे। मैं साहिल नहीं तेरा, साहिल मींस द शोर I ऑफ know, I शोर, know, I know. तो फिर उस लड़के का नाम साहिल, भाई वो खुद वो से बह गई relate कर बहन लिया। चो, दो तो बह गई, साहिल को मिली नहीं बेंचो। Dude, उसको दिल पे लग गया रहेगा। Obviously लग भाई गया। उसको लगा, वो मेरा इंस्टाग्राम पे मस्त मुझे मैसेज कर रहा है, भाई मस्त है ये गाना, वो हर लाइव पे अभी ज्वाइन भी? कर रहा है, अभी भी करता है। शाउट आउट साहिल बुजाड़े। हाँ बट अच्छा मतलब वो एक्सपीरियंस करना, बिकॉज ही वाज प्लेइंग हिज ओरिजिनल, आई वाज प्लेइंग द कॉर्न, मैं परकशन पे था, आशीष, हम अपन दोनों तीनों थे। तीनों थे। तो हम लोग ओरिजिनल बजाने का मजा ही अलग है ना भाई, Fuck, है ना। seriously, ओरिजिनल कवर इज अ डिफरेंट थिंग, कवर की एक एनर्जी अलग होती है, बट ओरिजिनल म्यूजिक इज समथिंग ऑफ योर ओन। तो उस वो जाके समवन रिलेटिंग टू इट, it was funny at that time, but now whenever, like, not even just that, it's not about that time, but when you sit and think about it, is someone relating to your shit is such it could be anything, your videos, your funny videos or whatever जो भी हो सकता है। अब मैं बकचोदी करता हूँ, लोग बोलते हैं अरे भाई दिस इज सो फनी, यू आर सो नाइस, अच्छा लगता है भाई। द अप्रिशिएशन, ही हैज रिटन समथिंग, वो परफॉर्म कर रहा है, एंड दैट इमीडिएट रिएक्शन की, अरे बहन चोद,
लाइक लौंडिया रोना ना, इट्स अ डिफरेंट थिंग. लौंडिया वहनचोद हर बात पे रो देते. कितनी सक्सेस बात है कर पाओ. मैं फेमिनिज्म ऑन नहीं, टॉप. मतलब, I mean- भाईचारा नो भाईचारा, I mean- नो भाईचारा, ओनली फेमिनिज्म. रो देती हैं भाई, सच में रो देती हैं ना. women are wired like that, but इसकी शादी हो चुकी है. घर पे लड़कियां- जाके my mind is men are fools. They don't मतलब appreciate their. Actually men should cry. भाई आ रहा था मैं यार, प्लीज यार. तो men don't appreciate their these feelings or whatever. They don't tend to show it. But girls कैसा, उनको लगा तो लगा भाई, आँख से आंसू निकल गए, रो दिया. और लौंडे जब रोते हैं ना, भैंचो ऐसा लगता है कि बहन के लौड़े पेंटअप है ना भाई. रोना इज दोस्तों के साथ में रोना, बट पब्लिक में तुम रो रहे हो बहन की चूत, वो अलग ही बात है. एंड या उसी बात में मैं बोलना चाहूंगा, बॉयज शुड cry. बॉयज शुड रो लो भाई, रो लो. Boys should cry. अच्छी चीज है. शुभम का मीम बनाएंगे हम, बॉयज शुड क्राई. एक टी-शर्ट बनाना है एक भाई. टी-शर्ट बनाना पड़ेगा. बॉयज शुड क्राई. रो लो Boys should पूरा cry. रो लो पूरा एकदम. I want to say this one thing guys. Boys should cry. रोना क्यों नहीं रो रहा? रो, अब भी रो. Oh fuck भाई, ये खींच रहा है उसको पता भी नहीं हो किसकी अभी रो. Oh my god. Bitch boy. Fuck. Anyway, yeah. भाई ये पॉडकास्ट पूरा मत देखना. तुम्हारी गांड लगेगी. रोना फिर बहनचो घर पे बैठ के. और रंडी रोने भाई, आई वांट टू टॉक अबाउट रंडी रोना. हाउ अस भाई रंडी रोना, what do you चार want to दोस्त say? हैं. रंडी रोना मतलब रंडी क्या? रोना मतलब भड़वे जो रंडी रोना करते हैं बिन मतलब की. रंडी रोना आई मीन रंडी रोना भी टर्म नहीं है भाई. रंडी रोना इज एक्चुअली अ गुड टर्म वेर यू जस्ट क्रिप. माय पॉइंट इज बॉयज एक्टिंग लाइक बिचेस. हाँ, इफ 3-4 फ्रेंड्स कांट सिट एंड टॉक एंड एक दूसरे की गांड ना मारे ना, तो क्या बात के दोस्त हो तुम. सीधी बात, तुम्हारी गांड फट रही है तो इंटरनेट पे रहो मत. सीधी बात, निकल जाओ. एज सिंपल एज दैट. एक दोस्त इंटरनेट था पे हमारा. Delete your account, make it private, fuck yourself. था एक दोस्त था हमारा. अपने गांड में कॉन्डम डाल के बैठो बहन. कुणाल को ब्लॉक कर दिया है. हाँ ऐसे, हाँ मेरे ऐसे वो तेरे को जिसके हम बात कर रहे हैं अभी जान दे. बट एक और एक ऐसा दोस्त है, बट तुम चूतिए हो. अभी तुम चूतिए हो, तुम चार और दोस्त तुम्हारे लेके माँ बात बहन बाप सब आ जाते हैं बहनचो इधर बीच में. चाहिए भाई. हाँ, तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम क्यों कर रहे हो? परमिशन लेके निकलो बाहर. परमिशन लेके निकलो, परमिशन लेके सोशल Yes. मीडिया पे आओ, सारी चीजें. और अपने माँ बाप को ये भी बताओ कि हम दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, हम लड़कियां छेड़ते हैं, हम गांजा मारते हैं. गांजा मार, सब ये सारी बताओ यार. ये सारी हाँ. चीजें ही बताओ. अगर तुमको बाकी चीजें बॉदर करती हैं तो इंटरनेट पे मत आओ ये सब चीज लेके. सिमिलरली और चार दोस्तों के बीच में डिप्लोमेटिक बिहेव मत करो बहन की चूत. डिप्लोमेटिक बिहेव करके बेंचो मेरे को ही नहीं पता, मेरे को वो नहीं पता, मेरे को लौड़ा नहीं पता. केला बेंच और मुंह पे रहो जो है. तुम चूतिए हो, तुम चूतिए रहोगे. एनीवे, माय पॉइंट इज आई विल टेल यू अ स्टोरी. सो बेसिकली इसका ही मतलब था कि बॉयज कैन क्रिप. ये रंडी रोना, मैं बोला ना रंडी रोना अच्छी बात है, रंडी रोना करो, बट रंडी मत बनो बहनचोद. नॉट इन द लिटरल सेंस. मतलब डोंट बी अ बिच. लाइक मेरे को ऐसा क्यों बोला, अरे लौड़े तेरे दोस्त ने बोला, तेरे दोस्त ने तेरी गांड मारी, कल तेरे साथ खाना खाएगा बैठ के वो. और साथ में टेबल पे बैठ के खाना खाए, उनके बातों का बुरा नहीं मानना जाता. और लोग लौंडे एक दूसरी गांड मारते हैं. इट्स ओके, इट्स और नॉर्मल. कोई इंसान भरोसा करके तुम्हारे साथ बैठता है ना भाई, उसका भरोसा मत तोड़ो बहनचोद. तुम चूतिए हो. हर भाई एक तेरे को बताता हूँ, हमारा एक कॉमन हमारा फ्रेंड है, इसका फ्रेंड है, वो तो दोस्त बन गया. वो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरी गांड मारता है. मतलब कमेंट्स पे चूतियागिरी करता है. मैं भी उसके वीडियो डालता ना, तो कमेंट्स से मेरी गांड मार रहा है. ठीक है, कमेंट्स पे कुछ भी बोलता है, मैं भी उसको गाली दे रहा हूँ. और उसके कमेंट्स को लाइक्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली ना आएंगे ना, वो गाली दे रहा है नॉर्मल. तो मैंने कभी उस बात को ना दिल पे लिया ना दिमाग में लिया. अरे फनी बकचोदी चलते ही है. हाँ, ऐसी भी तेरी गांड मार रहा हूँ, ठीक है, तू उधर मेरे कोई लोड नहीं है लाइफ में. एक दिन उसने एक फोटो अपलोड किया और मैंने कुछ लिख दिया, whatever बोल देता मैं. उसने फोटो लिखा, भोसड़ी का सेल्फी लिया, ऐसा रंडी जैसा सेल्फी लिया चूतिया सेल्फी लिया. और तो मैंने लिखा, ओ वाओ जूसी लिप्स, सिगरेट लिप्स, ऐसा कुछ तो लिखा मैंने. डार्क लिख रहे थे, डार्क जूसी लिप्स सिगरेट का कमाल है, ऐसा कुछ तो लिखा. भाई वो हमारे ग्रुप में फट रहा है, कुणाल हाउ डिड यू कमेंट दिस, ऐसा वैसा. मेरे कलीग्स ने देख लिया, मेरे पेरेंट्स के पास स्क्रीनशॉट चला गया. अरे लौड़े, मैं तेरे एमएमएस नहीं डाला उधर, मैंने सिर्फ कमेंट किया है. तू मेरे वीडियो पे क्या क्या कमेंट कर. मैं ये मेरा ये डिफेंस भी नहीं था कि तू मेरे वीडियो पे क्यों कमेंट. माय पॉइंट वाज, आर यू चूतिया? तेरे कलीग तेरे फोटो पे ये कमेंट करना कि सिगरेट देगा, तेरे कलीग तेरे को जज करेंगे. अभी सिगरेट पीता है करके ले, तू दारू पी रहा है, वो कूल है क्या? ये सब चीजें कूल है क्या? बोलता है मेरे फैमिली ग्रुप में फोटो चला. मैं तू अपने माँ बाप को छुपा के सिगरेट पी रहा है तो थोड़ा तो गांड में दम रख. मम्मी की कसम, मम्मी, अरे ऐसे मादर चोद ना, मम्मी की फोटो की कसम. और अगर बोल भी देता ना कि अरे मम्मी को बोल देना, पेरेंट्स को, अरे मम्मी वो मस्ती कर रहा है, झूठ बोल रहा है, मस्ती कर रहा है, इंटरनेट पे करते हैं. नहीं, उसको बस क्रिप करना था, रंडी रोना करना था बेसिकली. ऐसे इंस्टेंस है, हम उसके घर बैठे हैं, सिगरेट पी रहा, टेंशन में था लाइफ में, उसके टेंशन अलग चल रहे थे. लेकिन बकचोदी मत करो ना. माँ का कसम खा रहा है फोटो को हाथ रख के, आज से सिगरेट नहीं पीऊंगा.
बस खत्म माँ की चूत, अच्छा सिगरेट नहीं पीऊंगा। एंड वीवर, हम जब उसकी गांड उदास हुई थी ना, आइटम छोड़ के गई थी, तो हम उसको ना इतना कंसोल किया, सब चीज़ें बताई, और हमारे पास ही आ रहा था बात करने के लिए, इसके पास मेरे पास, इतनी अच्छी, सब अच्छे से बताया। ऐसा नहीं कि उसकी जब गांड लगी तो हम उसको छोड़ के चले गए, उसकी गांड ही मारे थे, नहीं, उसकी गांड लगी तो हमने उसको 4 चीज़ें बताई, और हमारी 4 चीज़ें करके आगे बढ़ा वो, किया उसने चीज़ें, और अच्छा हुआ, जो भी हुआ वो जान दे। माई पॉइंट इज, माँ का फोटो को कसम खा रहा है सिगरेट नहीं पीऊंगा, एंड वी वर लाइक बिग डील ना भाई, किसी के लिए बिग डील होना चाहिए वो। अगर तू मादरचोद आदमी है तो बात अलग है, बट इफ यू आर अ गुड पर्सन, यू आर वॉट एवर योर मॉरल्स, यू हैव मॉरल्स एंड दिस एंड दैट, तो तू कैसे पी सकता है? आधे घंटे बाद सिगरेट पी रहा है, क्या बोलता, उंगली रखा था। मैं बोला भड़वे, तू जब अपनी माँ का कसम खा के तू इतना झूठ बोल के कर सकता, तू मेरे को क्या दोस्त को क्या कंसिडर करेगा? सही बात है। तब हमको समझ गए ये इंसानी चूतिया है। तब हमको सब हम रिलेट करने लगा, ये झाटू ने वो हरकतें की है, तो अभी अपनों को, तू कैसे गुस्सा हो सकता है कि मैं तेरे फोटो पे कमेंट कर दिया सिगरेट लिप्स? बोल देता अपने कलीग को, लौड़े तुम मेरे को इस चीज के लिए जज कर रहे हो, तुम मेरे सोशल मीडिया देख क्यों रहे हो? दैट्स माय पर्सनल लाइफ, दैट इज नॉट गोइंग टू हिंडर माय प्रोफेशनल लाइफ। तेरे पेरेंट्स तक बात चली गई तो बोलना मम्मी यार वो मस्ती कर रहा है, दोस्त है मेरा। तेरी मम्मी तू भोसड़ी के 25 साल का भोसड़ी का चूतिया इंसान है तू, तेरी मम्मी को लगता होगा तू मम्मी पापा को ये लड़का गाली नहीं देता होगा, सेक्स नहीं करता होगा, आइटम नहीं, तेरे घर पे तो सब मालूम है कि आइटम है, सेक्स नहीं करता होगा, मैंने बोला सब कुछ सब मालूम है, लेकिन अपन लिमिटेशंस रखते हैं कि हाँ ये नहीं। लेकिन ये इतना अच्छे बनने का वो क्या बोलते हैं, पवित्र होने के नौटंकी मत करो, एटलीस्ट लौंडो तो लड़कियां नहीं कर रही हैं आजकल कोई, और करना भी नहीं चाहिए। सब लोग कपल्स होते हैं, उनका सेक्स होता है, माँ बाप को भी पता होता है कि हो रहा है, लेकिन कोई ऑब्वियसली कोई अफरंट बात नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं ओ फक मेरी मम्मी को मालूम पड़ेगा मैंने किस कर लिया, ऐसा नहीं होता। दुनिया में छोटी छोटी चीजों को लोग पैरानॉइड हुए बैठे हैं भाई, पैरानॉइड नहीं क्योंकि इन लोगों को एक फेक इमेज क्रिएट करना है अपनी दुनिया के सामने। इनको लगता है सोशल मीडिया पे हम क्लीन हूं मैं, मेरे को क्या बोलता है तेरा पेज ही वैसा है, तेरा चलता है, मेरा क्या लौड़े, मेरा चलता है मतलब क्या है? मैं उधर क्या पॉन डाल रहा हूँ क्या बेंचो, मैं कुछ भी डालूंगा, मेरा भी इमेज। तुम इनसिक्योर हो तुम्हारे इमेज के चक्कर में, मैं नहीं हूँ इनसिक्योर। एंड दीज थिंग्स डोंट मैटर कौन इनसिक्योर। मेरे शिट पोस्टिंग करने से मेरी सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी ये नहीं डिफाइन होती है ना। जस्ट बिकॉज तू लौड़े ऐसा एकदम चश्मा डाल के फोटो डालेगा, इसका मतलब ये नहीं भोसड़ी के तू IAS का पेपर दे के आया है, तू भोसड़ी के चोर होगा जीवन में। हाँ तू चोर बजा तो चश्मा डाल के अच्छा फोटो खिंचाया होगा, और क्या चूतिए लोग। ये इमेज जो सोशल मीडिया का जो नकली इमेज है ना कि और हमारा तो ऐसा ही है ब्रो, आई कांट शेयर योर वीडियो बिकॉज मेरे एस्थेटिक मेरे सोशल मीडिया एस्थेटिक को मैच नहीं कर रहा। आई कांट कोलैबोरेट नहीं कर सकता, मैं कोलैबोरेट नहीं कर सकता, कोलैबोरेशन से निकाल दूंगा बाद में, कोलैबोरेशन से निकल जाते हैं। वो क्या है ना ब्रो, जो वो एस्थेटिक है ना, मेरा वीडियो स्टाइल है ना पोस्ट डालने का और ये करने का, वो और पूरे 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 फीड पे जो 32 पोस्ट रहेंगे, हाँ 32 पोस्ट रहेंगे और वो मैच नहीं होगा। आज से 4 साल पहले इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन हुआ और 32 पोस्ट से ऊपर एक डाले नहीं। वन मोर थिंग, पर मैं दिन भर चमड़ी लड़कियों के वीडियोस लाइक करूंगा, मुझे दिखता है वो भड़वे जो तुम लोग नकली मत बनो। अरे हम लोग बहुत दो झाटुओं को जानते हैं, हम ऐसे हरकतें करते हैं। चंगू मंगू चंगू मंगू, तुम्हारा नाम चंगू मंगू है झाटू लोग, ये बकचोदी की है और भी बहुत चूती है इस मामले में, गुस्सा हो जाएंगे, मैं निकाल दूंगा कोलैबोरेशन से वीडियो। कैसे गुस्से मुंह फुला के बैठेंगे, कॉल नहीं उठाएंगे बेंचोत। कॉल कौन नहीं उठाता भाई, कॉल कौन उठाना बंद कर सकता है? जो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करता है ना भाई, वो तुम्हारा कॉल नहीं उठाएगा और कॉल बैक नहीं करेगा। एंड दिस इज अ रियल डिसरिस्पेक्ट, और इस डिसरिस्पेक्ट को तुम्हारे पास इसका एक ही जवाब हो सकता है, इसी तरीके से तुम रिटेलिएट कर सकते हो इस चीज को। रिटेलिएशन ऐसी होती है भाई, तुमने जिस तरीके का एक्शंस दिखाया, लाइक इफ यू सी समबडी लाइक हु इज जस्ट नॉट पिकिंग अप योर कॉल्स, देन दे आर नॉट इवन रिस्पॉन्डिंग, कॉलिंग यू बैक, यू आर रिस्पॉन्डिंग विद मैसेजेस एंड देन दे आर नॉट कॉलिंग यू बैक। तुम्हारे स्टोरीज देखे जा रहे हैं, सब कुछ देखे जा रहे हैं, बट तुमको कॉल नहीं कर रहे। व्हाट वुड यू इमेजिन और व्हाट वुड यू अज्यूम कि क्या चल रहा है भाई? कमिंग बैक टू शुभम, बॉयज डूइंग दैट इज स्टूपिड, वो इधर ही आ रहा था, बॉयज डूइंग दैट इज सच अ स्टूपिड थिंग। नाउ शुभम is not just here to talk about music, we are very good friends in the first place. We do this, we have friends, and we are going to grow, he's going to become a very big thing, we all know यार। अरे इसने तो अभी फॉर एग्जांपल मेरा पेज इसने भाई, हमने मतलब बकचोदी देखी सामने, इसके साथ हम पुणे जा रहे, वीडियो ब्लो अप हो रहा है, और तू तो बाद में आया पिक्चर में, my other friends know that I've been like that, just like that in real life। कुछ अलग तो कर नहीं रहे, ट्रू, कुछ भी अलग नहीं कर रहे, जितनी बकचोदी अभी हम करते हैं, उल्टा फिल्टर्ड है भाई, तुम्हारे पास फिल्टर हो क्या है? चोरी इतनी अनअपोलोजेटिक बातें हैं, खाना खाने जा रहे इतनी गंदी बातें कर रहे हैं हम, रियल लाइफ बॉयज लॉकर रूम। this is what happens at True Chat, like when you see this thing, this is
हाँ वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी रियल. ये शायद रील्स में शायद कम दिखे इसमें का कुछ पार्ट, हाँ बट पर इधर पूरा दिख रहा है. भाई यार कम ऑन. Like even while editing, I'll tell you, while editing, अपन जब edit कर रहे हैं वीडियो को, तो it's not about आलस कि हम लोग बीच बीच का वीडियो एडिट करके निकालते नहीं है. हम लोग को निकालना ही नहीं है. हाँ भाई fuck it. क्यों निकालना है? देखो वेंचर. और देखो ना, तीन दोस्त यार, ये इट्स अबाउट फ्रेंडशिप, इट्स अबाउट करियर चॉइसेस. ही इज डूइंग म्यूजिक हियर, आई एम डूइंग माय शिट, अदर डूइंग माय बुलशिट. आशीष, जो हम लोग 3 बैंडमेट्स थे बेसिकली, शुभम, आशीष, कुणाल. आशीष इज इन स्कॉटलैंड, ही इज डूइंग स्टडी शिट. अचानक मैं भयानक उसको स्कॉटलैंड इधर जॉब कर रहा था, कहीं से कुछ नहीं था भाई. अचानक मतलब जो भी है उसने प्लान किया होगा, उसने हमको नहीं बताया होगा, बट था, उसने कभी बातें चल रही थी और वो स्कॉटलैंड चला गया. हमको तो यकीन नहीं हुआ, बहुत चीज़ें फास्ट हो गई यार. वो गया, बहुत डामाडोल हो रहा था जाना आना, बट आज वो ही इज देयर, ही इज गोइंग टू कम बैक इन अ मंथ और 2. वो हैं. We have a very good friend called Pawan. He's a प्राणी, but ठीक है, he's doing his shit. तो he's doing his shit. भाई literally ये मैं आशीष, हम लोग ने ना हर चीज टॉपिक के बारे में बात कर सकते, बीट डेथ, बीट पेरेंट्स, बीट फैमिली, बीट व्हाट, एंड दैट इज हाउ इट इज सपोज टू बी. बीट एनीथिंग, कितने से गंदा टॉपिक, और गंदा नहीं बोलूंगा, अनकंफर्टेबल टॉपिक वेर यू थिंक आई कांट टॉक. आई थिंक क्या किस बात की दोस्ती है फिर. सिमिलरली नाउ, अभी मैं और प्रवीण भेंचो 6 महीने में, बट द थिंग इज कि भाई क्या बात करना है, लग नहीं रहा मैं इसको 6 महीने पहले मिला. सिमिलर माइंडसेट ना भाई. एंड समवन इज नॉट अ बिच. व्हेन यू आर अ बिच, यू फील दैट वाइब्स कि अरे इसके सामने ऐसा होना पड़ेगा. या I know of you. Oh fuck, Venture. You. तूच. So yes, so दोस्ती है भाई. It is not just him being a musician, or we are very good friends. He knows Shubham for a very long time, but उतनी बात नहीं होती होगी जितना. But he has basically, you have seen him grow randomly. Yes. Randomly, जैसे तू बोल रहा था कि इसके बाप के पास पैसे होंगे. बाप के पास, सबके बाप के पास पैसे थे नहीं थे बात नहीं है, करियर चूज करना. also you don't know, he's a fucking engineer, he's a mechanical engineer. भाई तेरे को ये बात पता है कि नहीं पता नहीं, but he's also an engineer. So choosing careers, let's come back to, हाँ भाई, let's if you are a musician, do it. बेंचो जिसके बाप का करोड़ों का बिजनेस है, उसके दिमाग में 24 घंटे ही चलते रहता है. माच चुदाने गया, मैं अपना जो है, मेरे को सोचा है मैंने कि मैं पैशन को फॉलो करूंगा. पैशन कैसे आधे से लोग ज्यादा चीजें नहीं होती है, वो बस नाम के लिए बाहर निकल जाते हैं टाइम पास करने के लिए. उनको पता है कि उनके पीछे है कुछ चीज, यही मेरे को धंधा चलाने का बाद वो वही चलाते हैं. एग्जैक्टली, विद इन अ फ्यू इयर्स, आई विल टेल यू, वही करते हैं. बाप के साथ गल्ले पे बैठे 5 years. अरे आई नो फ्रेंड्स जिन्होंने ये कभी एफर्ट ही नहीं लिया कुछ करने का. चल रहा है ना बाप का धंधा, गल्ले बैठा हूँ, कुछ नहीं कर रहे हैं. अभी शुभम, if you don't know, obviously you guys don't know, जिसके दोस्तों उनको पता होगा, we live in Airoli, but he has shifted to Goregaon now. Airoli में भी उसका स्टूडियो था, वो स्टूडियो चला रहा था. Now he has shifted to Goregaon. The place is evident here. You can see the place. This is Shubham's Crude place. Chat has different spots. It's growing. हम गेस्ट के घर Crude पे Chat चले has a जाते हैं. branch in Goregaon. 2 branches in Airoli. गोरेगांव ब्रांच guys. Goregaon branch, it's Goregaon branch. So yes, so And Goregaon branch में prosthetics, aesthetics थोड़े ज़्यादा अच्छे थोड़ा हैं. ज़्यादा अच्छा है. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें इधर. Shout out to SJ Studio Goregaon West. जिस सीट पे हम बैठे हैं ना, वहीं पे हम शुरुआत से बैठे थे. कैमरा सब शुभम पे लगा है. यहाँ तक कि 2 दिन पहले ऑडियो भी हमारे शुभम ने कर दी है. शुभम ने ठीक करके दिए. तो या शुभम, let's तो अब हमारी ऑडियो गायब नहीं होगी. I'm really sorry for the people. I'm really sorry. I would love to say sorry, not just love to say sorry to, but I'm very sorry to Dhruv and Kamlesh Soni also. Kamlesh Soni का पॉडकास्ट हमने 2 बार शूट किया था, बिकॉज पिछली वाली ऑडियो हमारी गायब हो चुकी थी. और ये चलो लेटेस्ट ठीक है, you were just learning, ठीक है, in that phase, accepted. अब दूसरी पॉडकास्ट की ऑडियो तुम जवाब ये देते हो भाई कि वो ऑडियो गायब हो गई, पता नहीं कैसे. रेक्टिफाई दैट एरर बॉस. उसके लिए अब क्या मैं नहीं बैठा हूँ, अब मैं उस इंसान को बोलूँगा. He actually called me twice or thrice. Sir, when Sheetal's podcast was coming out, he called me twice. Sir, अपना पॉडकास्ट कभी आ रहा है, अपना नहीं आ रहा है क्या? कितना बुरा लगेगा यार उस बंदे को. Because Dhruv is also a friend. कितना बुरा लगेगा बेंचो दिशांक को कि बेंचो ये पॉडकास्ट मेरे को निकालना पड़ा just because I was so trusting them. Blindly I trusted them. I mean, he trusted us. If you guys don't know, शुभम अपन आते हैं वो टॉपिक पे. अभी एक बार बात कर लेते हैं. उस बार दिशांक की बात आई तो we shot a podcast. तेरे को नहीं पता होगा, पता नहीं.
तेरे को नहीं पता शायद, पता आँख मार लेता हूँ जस्ट फॉर एनीवे। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वी शॉर्ट अ पॉडकास्ट एट किससे दिशांक के घर पे, दिशांक। तो उस चक्कर में 3 लोग थे, मैं, प्रवीण और एक बंदा था। तो उस क्या हुआ, 2 हफ्ते तक कुछ नहीं हुआ, पॉडकास्ट रिलीज शूट करने के 2 हफ्ते तक किसको कुछ नहीं लगा। पॉडकास्ट आया, किसी की मिर्ची लग गई, किसी सम वियर्ड प्रॉब्लम्स। वो बंदे के, तीसरे बंदे के लोग दिशांक को मैसेज कर रहे हैं कि निकाल पॉडकास्ट, ये वो, इट्स इंसल्टिंग। लौड़ा, इट इज़ नॉट इंसल्टिंग, इट्स जस्ट 3 फ्रेंड्स वेंचर टॉकिंग शिट, है ना। And we shared the same link with a lot of people जो हम लोग के पहचान गए थे। तो we were in self doubt कि बेंचो हमने इतना कुछ किया क्या, because हमको तो फिर भी कुछ बुरा नहीं लग रहा था। हाँ भाई, वो पॉडकास्ट में I'll tell you, I talked my shit, मतलब if you cross 40 minutes or whatever, 1.5-2 घंटे का पॉडकास्ट था। प्रवीण talked about his family and what not, बहनचोद first time talking about his shit। वो सब चीज़ अनदेखा कर दिया जस्ट बिकॉज इतना बड़ा ईगो है ना, मेरा इंसल्ट हो रहा है। लौड़ा कुछ इंसल्ट नहीं, तुम चूती हो, तुमने घर वालों को अपना पिक्चर अलग बताया। तो बेसिकली द अदर गाय, द थर्ड गाय टोल्ड दिशांत टू टेक डाउन द पॉडकास्ट वीडियो। टेक डाउन हो गया। अब ये बकचोदी इनकी चल रही, इनको 2 हफ्ते तक कुछ नहीं लगा, सब हंसी खेलते रहते। अचानक में नहीं भाई 4 हफ्ते यार, जब पॉडकास्ट ऑलमोस्ट अ मंथ, तो उनको ऐसा लगा, पहले बोले कि क्लिप हटा दें, मेरा क्लिप हटा देना। अरे तेरा क्लिप हटा के तो आया क्यों, बैठा क्यों, बोला क्यों, उसी टाइम पे बोलने का ना। वाई डिड यू टेक 2-3 वीक्स, सम मंथ्स। अभी मेरा और इसका एफर्ट तो छोड़ दे, इसने वेंचो अपनी फैमिली के फर्स्ट टाइम लाइव में बात की, वो उसका कुछ लेना देना नहीं रहा, उसका कुछ इंपॉर्टेंस नहीं रहा। भोसड़ी के मत रख, इसका इंपॉर्टेंस रख, मेरा मत रख, कुछ मत रख। वो तीसरा बंदा है जो एज अ होस्ट हमको बुलाया है तेरे घर पे, और वो पॉडकास्ट, उसका तो मेहनत का क्या, उसको तो बेचारे का उड़ गया। एंड ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ दैट शिट। वो घर चल रहा है, इट्स हिज ब्रेड एंड बटर। उसको एक पॉडकास्ट, और भाई तुम्हारी औकात नहीं है उसको पैसे देने की, तो ये बात भी मत करना कि तुम उससे का पैसा कमाने वाले हो क्या। भाई जितना पैसा कमाता होगा ना उतना तुम छोड़ो यार, छोड़ दो सब चीज बोलने की बात है। Anyway, Shubham, fuck all that. Let's come. It's already, we have completed 1 hour 45 minutes. We'll talk about one thing which is very much important. Yes. Shubham, how like now that you have done things. I was talking about, तो Airoli में था, स्टूडियो चला रहा था। Now that you're growing, you have come to Goregaon here. What was the reason? और भी एक क्वेश्चन था, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट वाज द रीजन? मुझे तो ये लगा ना भाई कि ये तो मेरे घर वाले बहुत पहले से बोल रहे हैं, स्पेशली माय सिस्टर, कि एक वो जो कहते हैं ना, आप अ फिश हैज टू आउटग्रो इट्स पॉन्ड। आई फेल्ट दैट हैपनिंग कि यार चलो एरोली में रह रहे थे, जितना करना था कर लिया, बट टू गेट इनटू द इंडस्ट्री, कितना भी मैं कह लूँ नहीं मुझे जरूरत नहीं है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं खुद का करूंगा, राइट, समवेयर यू हैव टू बी अराउंड, बट यू आर वर्किंग एज अ प्रोड्यूसर, सो या yes, definitely you have to be around those people, right. And not only just for work, it also motivates you, because when I am here, I am going to different events or any meetings or किसी में से मिल रहा हूँ, वो एक एनर्जी यार, वो लगता है अब और काम करना है, अच्छा ये काम कर, अब ये करना है, और दिमाग अलग से चलने लगता है, obviously. So that is the main reason of moving here, कि यार next step as an artist you are also learning things like networking and what not, obviously. हाँ, जरूरी है भाई, क्योंकि वहाँ पे रह के नहीं होता है, नहीं होगा, वो secluded ही है। कितना भी अपन ट्राई करें कि सोशल मीडिया पे, when you meet someone in person, it's a different thing. Definitely. And I am a in person. वो सोशल मीडिया पे नहीं जमता, अपन जैसे हैं सामने बहुत सही होता है। तो that is one thing, and I also feel कि यार leap of faith एक बहुत बड़ी चीज़ है, कि यार चलो रिस्क लेते हैं, नहीं है पैसे उतने है, 1 साल के लिए राइट डाल देते हैं ऑल इन, क्योंकि मैंने अब तक मैंने जिंदगी में हमेशा वही किया। एरोली में स्टूडियो स्टार्ट किया, पैसे नहीं थे, 2-3 महीने का रेंट था, डाल दिए, चलो देखते हैं, हुआ, जीते जीते हारे, पूरे ही हारे, वापस स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ का भी सीन वही है, ऑल इन हो, चला नहीं तो कोई बात नहीं, वापस चलो तो घर है भाई, वापस जाएंगे, वापस जीरो से करेंगे। पहले भी तो घर से ही कर रहे थे, सिंपल पैसा जोड़ रहे थे, धीरे धीरे वापस जोड़ लेंगे। बेसिकली एनीवन हु इज ट्राइंग टू बिकम अ प्रोड्यूसर और व्हाटएवर, और एन आर्टिस्ट और सिंगर और ड्रम और व्हाटएवर, अगर तुमको काम करना है इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री के नज़दीक जाओ, कोशिश करो, नेटवर्किंग करो सबसे पहले, बहुत ज़रूरी है। तुम जाओ, शोज़ को जाओ, इवेंट्स को जाओ, क्या होते हैं जो एक्सपोज होते हैं, वहाँ जाओ, लोगों से मिलो, उस इंडस्ट्री के लोगों से मिलो, तभी तुमको काम मिलेगा, काम बढ़ेगा। 4 जगह तुम कुछ और चीज़ मोटिवेट करने के लिए चीज़ें बनेगी। ऑल्सो एक बहुत सिंपल सा, हाउ इज इंडिपेंडेंट लाइफ, बिकॉज ही इज लिविंग अलोन हियर, ही हैज़ अ फुल फ्लेज फैमिली एट इन एरोली, बट हियर अभी खुद की रोटी बनाने का कैसा मजा आ रहा है भाई। गोल तो बन जाती है, सॉफ्ट नहीं बनती, काली हो जा रही है। ये गलत साउंड कर रहा है बट है। और अब तो सिंपल है, मुझे आती है,
रायता बनाना आता है? रायता पर मैं बूंदी रायता। स्टार्ट के रायता से किया करना चाह रहा है इसलिए। हम लोग ने रायता फैलाने वाले लोग देखे हैं भाई। बनाने वालों की बात बूंदी कर रहे हैं रायता यार। आता है मुझे ऑलमोस्ट सब सब्जियां आ रही हाँ। हैं। सिंपल है फंडा, गाना बनाना और ये सिंपल है। बस, बस, बस। मेन इंग्रेडिएंट है मेलेडी इसमें। इसमें है स्टार्टिंग का मसाला, कांदा, लहसुन, टमाटर और ऊपर टॉपिंग। वही चल रहा है लोग जिंदगी। गाना बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं और कुछ 2-3 चूतियां जो चूतिया ही बना रहे हैं कुछ भोसड़ी वाले। कोशिश कर रहे हैं भाई। नहीं, वो सही है। दूसरा वाला तो नहीं बना पा रहे, क्या हाँ। पता फ्यूचर में बनाओ। यस। चलता है, सही है, कल सही है। का कल, आज तो नहीं बना रहा मैं किसी को। नहीं, सही है। ट्रेडिंग यही है। पॉडकास्ट होना चाहिए भाई। हाँ। ट्रेडिंग। Trading भाई, Once Shubham has a fabulous story. Now that I guess we have crossed on our 30 minutes. 1 hour 55 minutes, 2 घंटा हो चुका है। Probably हम लोग हर इसमें एपिसोड में बोलते हैं शायद पार्ट 2, बट इसका पार्ट 2 तो पक्का हो सकता है बिकॉज Yes. ये एसजे स्टूडियो में हो रहा है। यस होना ही Production cost चाहिए। ये रिंग लाइट लगाया, रिंग हाँ, लाइट। And that should be not more than an hour. I don't know, whatever. Trading scams. भाई fuck, that's an अभी हम बात करेंगे किसी We'll put कोई on और stories podcast में, like definitely. compilation of stories of Definitely. trade. होना चाहिए भाई। Yeah, Shubham has a fantabulous story. मतलब स्टोरी क्या है वैंचोद, गुजरे लाइफ में वैंचोद। अभी देखो भी भाई, गुजर ही डूबा रहा है ना, अगर पैसा कहीं पे डूबा है ना, स्कैम हुआ है ना, तो वो स्कैम को तो बाहर निकालना पड़ेगा। सवाल बिकॉज 4 लोग और डूबेंगे उससे पहले हम नहीं लोग नहीं, भी बट डुबाने वाले। थिंग्स आर लीगली इन्वॉल्व, तो विल सी एंड विल डेफिनेटली टॉक अबाउट इट। कैसे भी पर्सपेक्टिव में बात करें, बट करेंगे, वो करना चाहिए। हाँ ब्रो। बट ठीक है यार, मजा आया वैंचोद। It was great. मजा man. आया वैंचोद। It was great मजा talking to Shubham J. I don't know when will be the next opportunity to talk to Shubham Jadhav. शुभम जे because- म्यूजिक ऑन इंस्टाग्राम Yes, बेबी। क्योंकि अब जब फेमस स्टार हो जाएंगे तब तो हम सीधा बैंड्रा, Guys, वर्ली या फिर बीच साइड के किसी Actually guys, I'm at Soho House. Oh yeah. So can you just come over? Guys, Oh, I yes. don't drink beer, मैं वाइन पीता हूँ अभी। मेरे वोकल्स के लिए खराब ऑयल है क्या इसमें? सॉरी मेरे वोकल कॉर्ड्स के लिए ठीक नहीं हो भाई, तभी भी वड़ा पाव ही खाएंगे हम Yes. लोग। यस हम लोग को कुछ नहीं लगता, हम कहीं पे भी खा लेते हैं। 100% Straight up. A town baby, A town. Praveen, Nice. A town for life. A town for life. Wrapping up for the day. Wrapping Yes, up for the day. See you guys in the next episode of Crude Chat. Till then, just hang on because now we have the whole system here. हाँ